السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول ہے گناہگار، اور اس کو لکھا ہے، اب مجھے نام کنفرم نہیں ہے، یہ زینہ شرجیل ہیں یا زینیہ شرجیل ہیں۔ تو ناول انہوں نے لکھا ہے، اور آج ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ آج ہم اس ناول کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ناولز اچھے لگ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا جو بٹن ہے وہ لازمی پریس کر دیا کریں، تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن، اس کا میسج آپ کو مل جایا کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ایک اور ریکویسٹ کہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی لاسٹ ایپیسوڈ، ناول گناہگار، لکھا زینیہ شرجیل نے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے اوپر جھکاؤ محسوس کر کے صبح عنایا کی آنکھ کھلی۔ نمیر کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہوا۔ عنایا نے نمیر کے شولڈرز پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر نمیر نے اس کی دونوں کلائی تھام کر اپنا کام جاری رکھا۔ عنایا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ کل رات وہ کتنی برے طریقے سے اس کا دل جلا رہا تھا، اور اب مزے سے اپنا مطلب پورا کرنے میں مگن تھا۔ عنایا نے کچھ بولے بغیر ہلکی سی مزاحمت کی اور دوبارہ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، جس پر نمیر نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ مطلب صاف تھا، وہ اس وقت اس کے نخرے برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مت اتنا بدگمان ہوا کرو مجھ سے میری جان، میں نے بتایا تو ہے میں صرف تمہارا ہوں۔ اب وہ عنایا کو دیکھتا ہوا اس کا گال سہلا کر کہنے لگا۔ پھر وہ جیکٹ عنایا کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ شاید نمیر اس وقت اپنے اور اس کے درمیان منال کا نام سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب اس نے عنایا کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹائے تو بہت سارے شکوے عنایا کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اب وہ نمیر کی باقی کی منمانیاں خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ کل کی فلائٹ سے فریدہ آنٹی اور خرم پاکستان آئے ہیں۔ آنٹی آپ کو پوچھ رہی تھی، اگر آپ بہتر فیل کر رہی ہیں تو ملنے چلیں، میں ابھی وہیں جا رہا ہوں، ساتھ ہی نوفل کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ نمیر اور ثروت ناشتے کی ٹیبل پر موجود، عنایا ان دونوں کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ تبھی نمیر ثروت کو بتانے لگا، کیا فریدہ پاکستان آ گئی ہے؟ ہم ہفتے بھر پہلے تو بات ہوئی تھی، اس نے زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر تو میں ضرور چلتی ہوں، اس سے مل بھی لوں گی۔ اور نوفل کو کیا ہو گیا؟ ثروت اپنی سہیلی فریدہ سے ملنے کا پلان بناتے ہوئے نوفل کے بارے میں پوچھنے لگی، جبکہ عنایا ان دونوں کو ناشتہ سرو کر کے نمیر کے برابر میں کرسی پر آ کر بیٹھی۔ کل نوفل کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس بیچارے کو نہ جانے کسی نے گولی مار دی، مگر گولی کندھے پر لگی ہے، اس لیے اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ نمیر کے بتانے پر ثروت اور عنایا دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات ہوگی اور تم نے مجھے کل رات کو نہیں بتایا؟ ثروت نمیر سے حیرت سے کہنے لگی۔ کہنا تو عنایا بھی یہی چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ رات میں اس لیے نہیں بتایا، آپ پریشان ہوتی، ٹینشن سے سو نہیں پاتی۔ ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہے، نہال اسی کے پاس ہے۔ صبح اس کو ہوش آ گیا تھا، ہم چلتے ہیں تو آپ خود دیکھ کر اطمینان کر لیجئے گا۔ نمیر ثروت کو ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ نمیر شانزے کیسی ہے؟ مجھے بھی اس سے ملنا ہے۔ عنایا کی بات پر نمیر نے اس کا چہرہ پریشان دیکھا۔ شانزے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ نوفل نے ہوش میں آ کر پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ وہ گولی مارنے والے کو نہیں جانتا۔ اسے چند دن سے فون کالز پر دھمکیاں موصول ہو رہی تھی، اسی وجہ سے وہ پہلے ہی اپنی وائف کو سیف جگہ پر چھوڑ آیا تھا۔ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا وہی بتانے لگا جو صبح 5 بجے نوفل نے ہوش میں آنے کے بعد اپنے بیان میں بتایا۔ یہ سب ڈیٹیلز وہ صبح ہی خرم سے لے چکا تھا اور اسے ابھی بھی خاموش رہنے کی تلقین کی تھی۔ اب وہ خود نوفل کے پاس جا کر اس سے سارا معاملہ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں گھر پر اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، 10 منٹ دیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ عنایا نمیر کو بولتی ہوئی اٹھی۔ اب وہ نمیر کو کافی الجھی ہوئی لگی، جبکہ عنایا کے کانوں میں شانزے کی آواز بات گشت کر رہی تھی، اس کی بہن کا گناہگار اسی سزا کا مستحق، تو اس کا مطلب شانزے نے نوفل بھائی کو، او گاڈ، اس کا مطلب یہ ہوا فرحین آپی کے ساتھ وہ سب نوفل بھائی نے۔ عنایا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئٹہ والے گھر کا شانزے نے اسی وجہ سے بتانے کا منع کیا کیونکہ وہ اس وقت کوئٹہ میں موجود تھی۔ ساری کی ساری کڑیاں عنایا کے ذہن میں خود جڑنے لگی۔ نمیر عنایا ثروت کو لے کر نوفل کے گھر پہنچا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی خرم اور نہال اسے اسپتال سے گھر لے کر آئے تھے۔ فریدہ کو اطمینان ہوا، اس نے نوفل کے اوپر سے صدقہ اتارا۔ ثروت بھی نوفل کے لیے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ نہال اور نمیر کا یہ دوست اسے بھی عزیز تھا، جبکہ عنایا نے سر کے اشارے سے سلام کے علاوہ نوفل سے کوئی دوسری بات نہیں پوچھی۔ وہ سب کے درمیان خاموش بیٹھی تھی۔
थोड़ी देर गुजरी तो फरीदा सरबत और अनाया को लेकर दूसरे रूम में बैठ गई। मुझे तो लगता है जैसे इन तीनों की दोस्ती को किसी की बुरी नजर लग गई है। देखा तुमने, एक माह भी नहीं हुआ निहाल को कोमे से वापस, और अब नौफल के साथ यह हादसा पेश आ गया। बस अल्लाह पाक हमारे बेटों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सरबत को छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन हो जाता था, इसलिए वो परेशान होकर फरीदा से बोली, कहती तो तुम ठीक हो, वाकई अल्लाह हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मगर नौफल की तरफ से अब मुझे बहुत फ़िक्र होने लगी है। तुम्हें मालूम है सरबत, इसको किसी और ने नहीं, इसी की अपनी बीवी ने जान से मारने की कोशिश की है। और जब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहा तो नमीर और खुर्रम ने मुझे मना कर दिया। तो देखो ज़रा, नौफल को होश में आने के बाद इसने पुलिस को गलत बयान दे दिया। मुझे तो रह रहकर इसके ऊपर भी हैरत हो रही है। फरीदा ने अपना गुस्सा दबाकर सरबत को असल बात बताई, जिस पर सरबत तो शौक हुई। अनाया को भी यकीन आ गया, यानी वो जो बात समझी थी वो बिल्कुल ठीक थी। फरीदा, ये तुम क्या कह रही हो? शांति, वो तो इतनी प्यारी बच्ची है, भला ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। सरबत को इसके इंकशाफात पर हद दर्जा हैरत हुई। नौफल जब मेरी इससे बात करवाता था तब मुझे भी वो बहुत प्यारी लगती थी, मगर अब मेरे राय इसकी बीवी के बारे में बिल्कुल बदल चुकी है। अभी तो मैंने चेक नहीं किया, न जाने वो कितने कैश और कीमती सामान लेकर फरार हुई होगी। फरीदा मूड ऑफ करती हुई सरबत से कहने लगी, आंटी आप शांति को गलत समझ रही हैं, वो ऐसी हरगिज नहीं है। जब हमें अपने की हकीकत मालूम ना हो तो इस तरह किसी दूसरे पर भी इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। अनाया को फरीदा का यूं शांति के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो खामोश रहने की बजाय एकदम बोल उठी। फरीदा नमीर की बीवी को देखने लगी। नौफल ने इसे बहुत पहले बताया था कि शांति और नमीर की वाइफ भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं आपस में। हकीकत जो भी हो, शोर से लड़ाई की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा घर छोड़ जाता है, यूँ गोली नहीं मारी जाती। मैं तो इरादा बना लिया है, अब नौफल की एक नहीं सुनूंगी, बल्कि अब वापस इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। पहले तो इसकी जॉब की वजह से ही कम धड़का नहीं लगा रहता था, अब तो मैं इसकी बीवी से भी खौफजदा हो गई हूँ। मालूम नहीं कब आ जाए इसके दोबारा मारने के लिए। फरीदा अनाया पर नजर डालकर सरबत को अपना प्लान बताने लगी। तब अनाया उठकर रूम में जाने लगी। कहाँ जा रही हो बेटा? सरबत ने अनाया से पूछा। नमीर से कहती है थोड़ी देर मुझे मामू की तरफ छोड़ा या ड्राइवर के साथ भिजवा दे, जरूरी काम था मुझे वहां पर, 1 घंटे में वापस ही कर लूंगी। अनाया सरबत को बताने लगी तो सरबत ने सारा हिलाया। अनाया रूम से बाहर निकल गई। तुम भी जरा इस पर नजर रखो, शक्ल की तो ये भी बहुत मासूम लग रही है, बिल्कुल शांति की तरह। अल्लाह पाक नमीर का भला करे। फरीदा सरबत को समझाती हुई नमीर को दुआ देने लगी। ओफो, फरीदा कैसी बातें कर रही है? मेरी बहू शक्ल की ही नहीं, वैसे भी मासूम है। मालूम नहीं शांति ऐसे कैसे कर सकती है, बच्ची तो वो भी बहुत प्यारी है। अल्लाह आगे बेहतर करे। सरबत ने फरीदा को देखते हुए कहा, कैसा महसूस कर रहे हो? अब तो भी ठीक है तुम्हारी? फरीदा सरबत और अनाया के रूम से जाने के बाद नमीर नौफल से पूछने लगा, पिस्टल की गोली खाकर आदमी कैसा महसूस कर सकता है? काफी दर्द हो रहा है, पेन किलर दो मुझे। नौफल नमीर को देखता हुआ बुरा सा मुंह बनाकर बोला, डॉक्टर ने इसे हर 6 घंटे पर पेन किलर देने को बोला। नमीर ने पेन किलर निकालकर खुद इसके मुंह में डाली, पानी पिलाने लगा। निहाल और खुर्रम भी इस वक्त नौफल के रूम में ही मौजूद थे। निहाल को नौफल का रवैया काफी बेगाना सा महसूस हुआ। जब से होश में आया तो निहाल की तरफ देखना तो दूर, इससे बात भी नहीं कर रहा था। निहाल ने इसे से खुद से बात करने की कोशिश की तो वो काफी रूड लहजे में इसकी बात का जवाब सरसरी अंदाज में देने लगा। थोड़ी देर पहले जब फरीदा नौफल के लिए सूप बनाकर लाई थी और निहाल ने इसे सूप पिलाना चाहा तो नौफल ने कह दिया वो ये सूप खुर्रम से पीना चाहता है। निहाल को इस की बात महसूस हुई, मगर वो ये सोचकर चुप हो गया। खुर्रम इसका छोटा भाई था और काफी अरसे बाद इससे मिल रहा था, मगर अभी थोड़ी देर पहले जब पेन किलर का टाइम हुआ और निहाल ने इसे खुद से उठकर पेन किलर देनी चाहिए तो नौफल ने साफ कह दिया, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेन किलर वो खा लेगा जब इसका मूड होगा। निहाल इसकी बात सुनकर दोबारा खामोश हो गया। वो खुर्रम का लिहाज करके नौफल से इसके रवैये की वजह नहीं पूछ सका, जो शायद नौफल ने इससे जिंदगी में पहली दफा बरता था। और अब वो पेन किलर मजे से नमीर के हाथ से खा रहा था। भैया, मेरे दोस्त मिलने आए हैं, मैं अपने रूम में मौजूद हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इकबाल से कहकर मुझे बुला लेना। खुर्रम मोबाइल पर अपने दोस्त की आमद का सुनकर नौफल को बोलता हुआ दरवाज़ा खोलकर कमरे से चला गया। अब कमरे में नौफल, नमीर और निहाल मौजूद थे। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? नौफल ने जब नमीर को अपनी तरफ मुसलसल देखता हुआ महसूस किया तब वो नमीर से पूछने लगा, आदमी जब पिस्टल की गोली खाए तो इससे दर्द होता है, लेकिन जब वही पिस्टल की गोली वो अपनी बीवी के हाथ से खाए तो ज्यादा तकलीफ होती है। झूठा बयान देकर क्यों बचाया तुमने शांति को? नमीर की आवाज पर कमरे में आती है नाया की कदम वहीं रुक गए। अब वो दीवार के साथ लगकर इनकी बात सुनने का इरादा रखती थी।
नमीर की बात सुनकर जहाँ नौफल चौंका वहीं निहाल ने भी हैरत से इन दोनों को बारी बारी देखा। अब नौफल मुस्कुराकर नमीर को देखने लगा। कुछ इंकशाफ ऐसे भी होते हैं जो बीवी के हाथ की गोली खाने से ज्यादा तकलीफ दे होते हैं। नौफल ने नमीर को बोलते हुए एक नजर निहाल के चेहरे हैरत ज़्यादा चेहरे पर डाली और फिर नमीर को देखता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है नमीर, मैंने उस शख्स के नाम की गोली अपनी बीवी से अपने ऊपर खाई है। नौफल दांत पीसकर निहाल की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वैसे निहाल सोफे से उठ खड़ा हुआ। ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? भला तुम्हारी बीवी और तुम्हारे मामले से मेरा क्या लेना देना है? निहाल गुस्से में नौफल को देखता हुआ बोला, जबकि अमीर खामोश खड़ा निहाल को और फिर नौफल को देखने लगा। तुम्हारा मुझसे या मेरी बीवी के मामले से कोई लेना देना नहीं, मगर मेरी बीवी की बहन से तुम्हारा ही लेना देना है। नौफल लहजे में तल्खी समाये निहाल को देखता हुआ बोला, फिर इसने नमीर को देखा। तुम्हें मालूम है नमीर, फरहीन का मुजरम, इसका गुनाहगार कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि ये शख्स है। हम तो इस बात का मलाल करते रहते थे कि इस रात हम दोनों ने शरारत में इस बेचारी को क्लासरूम में बंद किया, मगर इसके साथ बेरहमी से जानवरों से भी बदतर सलूक इसने किया। नौफल हकारत भरी नजर निहाल पर डालकर नमीर से बोला। नमीर बेयकीनी सदमे के मारे निहाल का घबराया हुआ चेहरा देखने लगा। इसे तो जैसे नौफल की बात से चुप ही लगी। ये सब कुछ नौफल निहाल के बारे में बोल रहा था। वो इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं बोल सकता था, और निहाल का घबराया हुआ चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि वह नौफल की बात से परेशान हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में? इतनी बड़ी बात बोलते हुए तुम्हें पहले 10 मर्तबा सोचना चाहिए था। निहाल अपनी पोल खुलता हुआ देखकर चीखता हुआ बोला। चीखो मत निहाल, ये बात हम तीनों के अलावा कोई और सुनेगा तो शर्मिंदगी से तुम्हें अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। नौफल निहाल को आपे से बाहर आता देखकर सख्ती से बोला, मगर इस कमरे से बाहर खड़ा वजूद जो सारी बातें सुन रहा था, वो न सिर्फ सुन रहा था बल्कि कमरे में होने वाले इंकशाफ पर अनाया का अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। फेयरवेल पार्टी वाली रात हम दोनों समझे कि ये तबीयत खराबी की वजह से वहाँ नहीं आ सका है, मगर सच तो ये है ये इस रात यूनिवर्सिटी आया। फरहीन की आवाज़ें सुनकर क्लासरूम का दरवाज़ा खोला, मगर इसकी मदद करने की बजाय इसने इसी की आबरू को पामाल किया। यही नहीं, इसको ज़ख्मी किया। वो तड़प रही होगी, इसको बुज़दिलों की तरह वहाँ छोड़कर फ़रार हो गया। तुम जानते हो नमीर, इस दिन इसने वही शर्ट पहनी थी जो खुर्रम ने मुझे प्रेज़ेंट की थी, जो इसने बाद में मुझे सॉरी कहकर लौटाई थी कि किसी से झगड़े में इसकी जेब फट गई। वो जेब बाद में फरहीन ने शांदे को दी, और इसी जेब की वजह से शांदे ने मुझे फरहीन का गुनहगार समझा। उसने मुझसे अपनी बहन की इज़्ज़त की पामाली और मौत का बदला लिया। नौफल नमीर को देखता हुआ निहाल की सारी हकीकत बताने लगा। निहाल अभी अपनी दिफा में कुछ बोलता, इसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी अनाया पर पड़ी, जो आंसुओं से तर चेहरे से निहाल को देख रही थी। अनाया! निहाल अनाया को देखकर इसको पुकारता हुआ अनाया के करीब पहुंचा। नौफल और नमीर भी निहाल के साथ अनाया को देखने लगे। वो सब झूठ बोल रहा है, तुम प्लीज इसकी बात पर यकीन नहीं करना। मुझे इस तरह मत देखो अनाया, वो अपने जुर्म का एतराफ़ दुनिया के सामने कर सकता था, मगर अनाया और सरवत के सामने नहीं। इस वक्त अनाया की आंखों में अपने अपने लिए मान और वक़ार को टूटता हुआ देखकर इसे शदीद तकलीफ हुई। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि आप इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। अनाया के लफ्ज़ इसे चाबुक की तरह लगे कि वो तड़प कर रह गई। नमीर कदम उठाता हुआ अनाया के पास आया तो अनाया से देखने लगी। मुझे यहाँ से जाना है नमीर, प्लीज़ मुझे घर ले चलें। वो जो फरमान के पास जाने का इरादा रखते थे, नमीर के पास आकर अब इसका दिल चाहा वो अपने घर चली जाए। नमीर ने एक हाथ से इसके आंसू साफ किए, दूसरा हाथ इसके कंधे के गिर्द हाइल करके निहाल को देखता हुआ अनाया से बोला, चलो। नमीर का यूं अनाया के कंधे के गिर्द हाथ रखकर इसके पास से ले जाना निहाल को ऐसे लगा जैसे नमीर अनाया के गिर्द अपना हिफाजती हिसार बांध रहा हो, अनाया को इसकी शर से बचाने के लिए। वो इतना गिरा हुआ इंसान तो नहीं था जो अनाया पर बुरी नजर रखता, वो तो इसकी मोहब्बत थी। नमीर की आंखों में इस वक्त इतनी बेएतबारी थी। नमीर इसको किन नजरों से देख रहा था। निहाल को अपना आप किसी खाई में गिरता हुआ महसूस हुआ। इकबाल, मेरे कमरे की लाइट बंद कर दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। अब यहाँ आकर कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। नौफल की आवाज़ पर गुमसुम खड़े निहाल ने नौफल को देखा। वो इससे लाताल्लुक होकर बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। निहाल को लगा इसका सांस बंद हो जाएगा। वो सब लोग इसे क्या समझ रहे थे। बहुत मुश्किलों से अपने पैरों पर जोर देकर वो खुद भी नौफल के कमरे से बाहर निकल गया। कब तक इस तरह बैठी रहोगी? वो दोनों थोड़ी देर पहले नौफल के घर से आए थे। नमीर अपने मैनेजर को फ़ोन करके आज इसे अपने ऑफिस में आने का इन्फॉर्म कर रहा था और चंद ज़रूरी हदायत भी दे रहा था। जब वो कमरे में वापस आया तो अनाया बेड पर इसी पोजीशन में बैठी थी। नमीर इसके पास बेड पर आकर बैठता हुआ बोला, आपको ज़रा भी दुख नहीं हुआ निहाल भाई की हरकत पर? अनाया नमीर को देखती हुई पूछने लगी। दुख तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इसकी नीच और घटिया हरकत पर खून खोल रहा है मेरा। शर्म आ रही है इसे अपना भाई कहते हुए। नमीर ने तल्खी से कहते हुए अपना सर झटका।
नमीर मुझे शांति की बहुत फ़िक्र हो रही है, वो सब कुछ बहुत गलत समझ बैठी है। अनाया नमीर को देखती हुई बोली, यार अब नौफल ऐसे ही तो नहीं बैठेगा, वो मालूम तो लाज़मी करवाएगा शांति के बारे में, आखिर को वो इसकी बीवी है। नमीर अनाया को देखते हुए कहने लगा, नमीर मैं जानती हूँ इस वक़्त कोयटा में होगी अपनी खाला के पास। अनाया बहुत धीमी आवाज़ में नमीर को बताने लगी, जिस पर नमीर ने इसको घूर कर देखा। यानी तुम्हें मालूम था शांति का? नमीर ने डरते हुए इससे पूछा तो वो सर झुका गई। ये थोड़ी मालूम था वो अपने शोहर को गोली मारकर वहाँ से गई है। वो तो बस उसने फ़ोन करके मुझे मना किया है कि आपको और निहाल भाई को कोयटा वाले घर के बारे में कुछ ना बताऊँ। अनाया सर झुकाए मुजरिमों की तरह इसकी कॉल का भी बताने लगी। और मेरे कल रात पूछने पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये एतबार है तुम्हारा अपने शौहर पर? नमीर इसके झुके हुए सर को घूरता हुआ बोला। वो अनाया से नाराज़ होकर उठने लगा, तभी अनाया जल्दी से इसके सीने से लगी। नमीर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मुझे फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो नमीर की कमर पर अपने हाथ बाँधकर नमीर के सीने से लगने लगी कहने लगी। नमीर के होठों पर मुस्कुराहट आई। मैं भी यही चाहता हूँ तुम्हें मेरे अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगे। नमीर का जुमला सुनकर अनाया ने नमीर के सीने से सर उठाकर इसे देखा तो नमीर ने इसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे। जल्दी से शांति की खाला का एड्रेस दो, मुझे पक्का यकीन है अपने दोस्त का बीवी के हाथ से गोली खाने के बावजूद वो अभी भी इसी के लिए परेशान हो रहा होगा। पक्का जन मुरीद निकला है वो। नमीर एक तरफ नौफल के लिए रिलैक्स हुआ कि शांति का पता मालूम हो गया, तभी अनाया को खुद से अलग करता हुआ बोला, आप नहीं अपने दोस्त की तरह जन मुरीद? अनाया अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करके नमीर से पूछने लगी। इसकी बात सुनकर नमीर के चेहरे पर संजीदगी आई। वो घूरता हुआ अनाया को देखने लगा। समझना भी नहीं मुझे ऐसा। नमीर ने चेहरे के तासुरात संजीदा रखकर पूरी कोशिश की कि अनाया इससे डर जाए। आप कितनी ही बड़ी आंखें करके मुझे घूरे, मैं नहीं डरने वाली आपसे। अनाया मुस्कुराकर इसे देखती हुई बोली। वाकई? वो अब भी घूरता हुआ पूछ रहा था। वाकई मुझे अब डर नहीं लग रहा। अनाया मुस्कुराती हुई नमीर को देखकर कहने लगी। फिर तो अल्लाह ही बचाए हम दो मासूम शोहरों को। नमीर संजीदगी से अपने नौफल के लिए दुआ करने लगा। अनाया दोबारा मुस्कुरा दी और इसे देखकर नमीर भी मुस्कुरा दिया। आपने शांति के घर का पता पूछा था, मगर मुझे इसकी खाला का लैंडलाइन नंबर मालूम है, एड्रेस नहीं। अनाया अब असल बात पर आकर अपनी बेड के उठती हुई नमीर को बताने लगी। हाँ तो नंबर दो, मुझे एड्रेस मालूम करना कौन सा मुश्किल है। तब मैं शांति की खाला के घर जाकर इसे सब हकीकत बता दूंगा। नमीर की बात सुनकर अनाया ने मुड़कर इसे देखा। आप कोयटा जाएंगे? अनाया अपना मोबाइल उठाकर नमीर के पास आई और इससे पूछने लगी। चंदा अब तुम ये मत भूलना, तुम्हें भी कोयटा जाना है। ये मसला स्लो हो जाएगा, फिर हम दोनों हनीमून के लिए ये मसला सोल्व हो जाए तो फिर हम दोनों हनीमून के लिए चलेंगे। नमीर इसके तासुरात देखकर अनाया को बहलाता हुआ बोला, ऑफ कोर्स मैं चलूंगी कोयटा। नमीर अब की बार आप मुझे नहीं रोक सकते, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है वहां जाकर। अनाया ने बोलने के साथ फरमान के घर का नंबर मिलाया। जी बुआ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे रूम में अलमारी की ड्रॉर में एक रेड कलर की डायरी है, वो मुझे अभी फौरन चाहिए, आप ड्राइवर के हाथ भिजवा दें। अनाया ने बात मुकम्मल करके कॉल काटी तो कमरे की खिड़की से इन दोनों को निहाल की गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे देखकर नवीर ने सर झटका। नमीर मुझे एक बात कंफ्यूज कर रही है, नौफल भाई ने ये क्यों कहा कि शांति ने अपनी बहन की मौत का बदला लिया, जबकि फरीन अभी तो जिंदा है? अनाया की बात सुनकर नमीर को एक बार फिर हैरत का झटका लगा। कल से अब तक इसे सिर्फ शौक पर शौक ही लग रहे थे। क्या वाकई फरहीन जिंदा है? और गौर यूनिवर्सिटी में तो ये बात मशहूर थी, इसी क्लासरूम में एक लड़की ने खुदकुशी की थी, जबकि एक लड़की को मारा गया था। नमीर नफ़ी में सर हिलाता हुआ खुद से कहने लगा, मगर अंदर कहीं इसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। अब इसे नौफल से ये सब बातें जल्द शेयर करनी थी। नमीर क्या सोच रहे हैं? एक बात तो सुने। अनायत को गायब दिमाग देखकर फौरन बोली, सुनिए सुनाइए अपनी एक बात मुझे मेरी जान। नमीर इसको बाहों में लेता हुआ बोला, आपने मुझे बताया ही नहीं कि मिनाल आपी के पास आपकी जैकेट कैसे आई? अनाया के दिमाग में भी ये बात भी चिपक कर रह गई थी। अनाया की बात सुनकर नमीर ने मुस्कुराकर इसका चेहरा थामा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं ये चाहता हूँ तुम अब इसी बात को 24 घंटे सोचो। नमीर प्यार से इसके दोनों गाल थपथपाता हुआ बेडरूम से बाहर निकल गया। अहम तरीन खबरों के मुताबिक मलिक अनवार करप्शन केस का पर्दाफाश करने वाले एसपी नौफल अब खतरे से बाहर निकल आए हैं। जी हाँ, ये वही अफसर हैं जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मलिक अनवार जैसे करप्ट सियासतदान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। मगर अफसोस, जिस दिन उन्होंने सारे सबूत मीडिया को पेश किए, इसी दिन एसपी नौफल पर जानलेवा हमला करके किसी ने इनको मारने की कोशिश की। मगर जो इतलात सामने आई हैं, इनके मुताबिक एसपी नौफल अब खतरे से बाहर हैं। तो बाकी 6 बजे का वक्त जब शांति की आंख खुली, बेदिली से वो टीवी के सामने बैठ गई, मगर न्यूज़ चैनल पर चलने वाली खबर को देखकर एक पल के लिए वो सुन्न हो गई।
इसके दिल को कुछ हुआ, नौफल सलामत था इस बात का सोचकर कि एक इत्मीनान की लहर इसके अंदर दौड़ी। गोली चलाते हुए इसके हाथ भी कांपे, दिल भी लरजा, मगर जब फरहीन का चेहरा इसके सामने आया तो ट्रिगर खुद ब खुद इसकी उंगली से दब गया। वो अब अजीब दोराहे पर खड़ी थी, एक तरफ बहन तो दूसरी तरफ शोहर, जो इसकी बहन का मुजरिम था। पूरी दुनिया में एक यही शख्स रह गया था मुझे जिससे मोहब्बत होनी थी। शामज़ाद ने सोचते हुए सर झटका। टीवी बंद करके वो सोफे से उठी, मगर डोर बेल की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। इतनी सुबह आखिर कौन आ सकता है? शांति सोचती हुई शॉल अपने गिर्द लपेटकर बाहर दरवाज़ा खोलने गई। 2 दिन की बदनिस्बत आज खासी सर्दी थी। शांति ने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अनाया को देखकर वो हैरत ज़दा हो गई। अनाया, तुम यहाँ इस वक्त? शांति हैरत से इसे अपने सामने खड़ा देखकर बोली। अनाया ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। वो अनाया से मिलकर अभी कश्मकश में थी। इसकी नज़र दरवाजे पर खड़े नौफल और नमीर पर गई। अब वो अनाया से अलग होकर इसे शिकायती नज़रों से देखने लगी। अपनी सहेली से भी बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने ही आया हूँ। शांति के अनाया का यूं देखने पर नौफल शांति को देखता हुआ बोला, मेरे पास सब सवालों के जवाबात मौजूद हैं। मुझे किसी से भी कोई जवाब तलब नहीं करना। शांति नौफल को देखती हुई बोली और कमरे में जाने लगी। सारे के सारे जवाबात तुम्हारे अपने अखज़ किए हुए हैं। हकीकत से तुम अभी भी लाइल्म हो। नौफल शांति का हाथ थाम कर बोला, मुझे कुछ भी जानने की ख्वाहिश नहीं है, चले जाओ यहाँ से। शांति नौफल को देखकर अपना हाथ छुड़ाती हुई दोबारा जाने लगी। फरहीन का मुजरिम नौफल नहीं, निहाल है। नमीर की बात पर शांति के कदम रुके। वो मुड़कर बेयकीनी से नमीर को देखने लगी। वाह, काबिल तारीफ है आपकी दोस्ती। यानी अपने दोस्त को इसकी बीवी की नज़र में बेगुनाह साबित करने के लिए आप सारे का सारा इल्ज़ाम अपने ही सगे भाई पर लगा रहे हैं। क्या कहना है आपका? आपकी दोस्ती की मिसाल तो तारीख के पन्नों में सुनहरी हरफों से लिखनी चाहिए। शांति नमीर को देखती हुई तंदिया लहजे में बोली, इसमें कोई शक नहीं है, नौफल इन लोगों में से है जो मेरे दिल के बेहद करीब, और हम दोनों की दोस्ती हमेशा से बेमिसाली ही रही है। मगर कोई भी भाई अपने दोस्त का किया गया गुनाह अपने सगे भाई पर नहीं थोपेगा। जिस बात को तुम हकीकत समझ रही हो तुम्हारी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को ही हम लोग दूर करने यहाँ आए हैं। वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बीवी से गोली खाने के बाद इसे वजाहतें देने के लिए खुद चलकर इसके पास आए। नमीर शांति को देखता हुआ बोला, इतने में नायला बाहर से आई और नौफल समेत नमीर और अनाया को देखकर ठटक गई। नौफल के और बारी बारी सबके सलाम के जवाब के बाद इसने सबको अंदर कमरे में आने को कहा, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी। हीटर ने कमरे का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। नमीर की ज़बानी असल हक़ाइक़ जानने के बाद इस वक्त कमरे में खामोशी फैली हुई थी। नमीर, नौफल, शांति, अनाया के अलावा नायला और इसकी कज़न सायमा, जिसका ये घर था, इस वक्त कमरे में मौजूद थी। इस सारे वाक़े में, इस सारे किस्से में पूरे का पूरा कसूरवार मैं भी सिर्फ निहाल को नहीं समझता। काश मैंने इस दिन शरारत में फरहीन को क्लास में नहीं जाने का बोला होता तो ये सब कुछ इसके साथ नहीं हुआ होता। नमीर की तरह मैं भी अपने किए की आपसे माफ़ी चाहता हूँ आंटी। जब नमीर ने सारा किस्सा बयान करने के बाद अपनी गलती पर पेशवानी ज़ाहिर करते हुए नायला से माफ़ी मांगी तो नौफल, जो काफ़ी देर तक खामोश था, नायला को देखता हुआ शर्मिंदगी से बोला, यह हादसा मेरी फरहीन की किस्मत में लिखा था जो इसके साथ पेश आया। औरत की इज्जत ऐसी शय होती है, एक बार जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आ सकती, क्योंकि कितना ही पछता ले या माफ़ी मांग ले, मगर जो इसने बर्दाश्त किया और जो वो इस वक्त तक बर्दाश्त कर रही है, इसका हर जाना कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तुम दोनों के दिलों में खौफ खुदा है, जब भी तुम दोनों यहाँ आए। बस मेरे दिल से एक बोझ उतर गया कि मेरी एक बेटी को जाड़ने वाला दूसरी बेटी का शौहर नहीं है। इस हकीकत के साथ जीना मेरे लिए वाकई तकलीफ दह अमल होता, और शांति के लिए मुझसे भी ज़्यादा। नायला की बात पर नौफल और शांति दोनों ने एक दूसरे को देखा। शांति ने फौरन नज़रों का ज़ाविया दूसरी तरफ कर लिया। बच्चे लंबा सफ़र तय करके आए हैं, नायला थक गए होंगे, इन्हें कमरा दिखा दो ताकि आराम कर लें थोड़ा। सारे अरसे में खामोश बैठी नायला की कज़न साइमा बोली, फरहीन के साथ जब ये हादसा पेश आया, इसके सर पर चोट लगने और भयानक हादसे की वजह से फरहीन के दिमाग पर इस वाक़े का गहरा असर पड़ा। वो हर किसी को देखकर बुरी तरह चीखती, डर के मारे रोती, कई दिन तक किसी से बात नहीं करती। वो खौफज़दा नज़रों से शांति और नायला को देखती। नायला ने शुरू-शुरू में जब इसके मुजरिम का नाम पूछना चाहा तब इसकी हालत बिगड़ जाती। चीख-चीख कर रोती, किसी को कुछ नहीं बताती। इसकी दिन-ब-दिन बिगड़ती हालत देखकर साइमा इसे अपने साथ कोयटा ले गई। साइमा का शौहर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर था। औलाद न होने की वजह से और काफ़ी जायदाद होने के सबब साइमा ने अपने बड़े से घर को 2 हिस्सों में तक़सीम करके घर के एक हिस्से का पोर्शन को मज़लूम और बेसहारा औरतों के लिए अकेडमी बनाई थी। शुरू-शुरू में फरहीन को सँभालने में इसे भी काफ़ी मुश्किल दरपेश आई, मगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो अब काफ़ी हद तक सँभल
गई थी, बल्कि वो इसी माहौल की आदी भी हो गई थी। वो घर के दूसरे पोर्शन में ही रहती थी। शांति और नायला इससे मिलने आती तो वो इनको पहचान लेती। वो दोनों जब इससे खुद से बात करती तो इनकी बातों का जवाब दे देती। डॉक्टर के मुताबिक इसके साथ होने वाले हादसे ने इसके ज़हन पर काफ़ी गहरा असर छोड़ा था। जब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ठीक होता, लिहाज़ा नायला ने इससे दोबारा इस वाक़ये के बारे में पूछना छोड़ दिया था। नायला ने नमीर और नौफल के इनके कमरे दिखाए। नमीर कमरे में आकर कमरे में मौजूद बेड पर लेट गया और लेटते ही इसकी आँख लग गई, क्योंकि मुसलसल 8 घंटे से इसने ड्राइव की थी। इसके बाद वो लोग कोयटा पहुँचे थे। अनाया तकरीबन सारे रास्ते ही सोती हुई आई थी। नौफल वक्फे-वक्फे से जाग रहा था और सो रहा था। इसने कई बार नमीर से खुद ड्राइव करने का कहा, मगर नमीर ने इसे मना कर दिया। जब रात नमीर ने नौफल को शांति के बारे में बताया तो नौफल भी इसके और रिदा के लाख मना करने के बावजूद वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ नमीर ने सरवत को ज़रूरी काम का बताकर कोयटा जाने का बताया। नमीर के कुछ बोलने से पहले ही वो नमीर से कह चुकी थी कि अनाया को अपने साथ ले जाए, वरना वो सारा दिन घर में दाँत फेरेगी। और ये भी सरबत ने इसे इत्मीनान दिला दिया कि अब इसकी तबीयत बेहतर है और हमीदा इसके पास रुक जाएगी और फिर घर में निहाल भी मौजूद है, तो इसे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अलग बात है, निहाल घर में आने के बाद अपना कमरा बंद करके बैठ गया था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। सरबत के पूछने पर इसने तबीयत खराबी का बोला था। नमीर की 2 घंटे बाद आँख खुली तो बेड पर अनाया मौजूद नहीं थी। वो इसके सोने से पहले ही नमीर को बता चुकी थी कि वो शांति के कमरे में मौजूद है। नमीर रूम से बाहर निकला, नौफल के रूम में जाकर देखा तो वो भी सो रहा था। दूसरे रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। यकीनन दोनों सहेलियाँ अपनी बातों में मसरूफ़ थीं। नमीर ने नफ़ी में सारी लाकर दरवाज़ा नॉक किया, तो शांति ने दरवाज़ा खोला। "नमीर भाई, आप सोकर उठ गए हैं? मैं नाश्ता भिजवाती हूँ आपके लिए।" शांति नमीर को देखकर कहने लगी, "नहीं, नाश्ता तो रास्ते में कर लिया था। आप प्लीज़ अनाया को भेज दें और ये नौफल की मेडिसिन है, इसको दे दीजिएगा याद से। ज़ख्म देने वाला अगर इस ज़ख्म पर मरहम रखे तो ज़ख्म जल्दी भर जाता है।" नमीर अपनी जैकेट के पॉकेट से मेडिसिन निकाल कर शांति को देता हुआ बोला, तो शांति इसे देखने लगी। नमीर इस्माइल देकर अपने रूम में वापस चला गया। नौफल की खटके की आवाज़ से आँख खुली, कमरे में किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसका ज़हन बेदार हुआ। शांति साइड टेबल पर ट्रे रख रही थी, जिसमें ब्रेड के पीस के साथ दूध का गिलास और इसकी मेडिसिन रखी थी। "उठकर बैठो और नाश्ता करो ताकि ये मेडिसिन ले सको।" कमरा काफ़ी ठंडा हो रहा था। वो हीटर ऑन करने लगी। "हैंड मूव नहीं होगा मुझसे, नमीर को बुला दो, वो नाश्ता करा देगा मुझे।" नौफल उठकर बैठ गया और शांति को देखता हुआ बोला। नौफल की बात सुनकर शांति ने खामोशी से कमरे में मौजूद चेयर को बेड के पास रखा। इस पर बैठकर वो नौफल को अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगी। नाश्ता करवाते वक़्त वो नौफल को देखने से मुकम्मल गुरेज़ कर रही थी, जबकि नौफल शांति के हाथ से नाश्ता करते हुए सिर्फ़ इसी को देखे जा रहा था। "तो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो शांति? तुम्हें मैं इतना घटिया इंसान लगता हूँ कि किसी लड़की के साथ इस तरह करूँगा?" शानदार नाश्ता करवाने के बाद नौफल को दवा खिलाकर ट्रे लेकर जाने लगी, तब नौफल इसका हाथ पकड़कर खड़ा होता हुआ पूछने लगा। शांति ने नज़र उठाकर नौफल को देखा। इसकी आंखों में नदामत के आंसू भी थे। "सॉरी।" शांति नौफल के गले में हाथ डालकर सीने से लगती हुई रोने लगी। नौफल ने इसकी कमर के गिर्द अपना दायां हाथ रखा। "दुनिया की पहली बीवी हो तुम जो शौहर को गोली मारने के बाद इतने प्यार से सॉरी बोल रही है।" नौफल के बोलने पर शांति के रोने में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। "इस तरह अगर मेरे सीने से लगी रोती रहोगी तो थोड़ी देर में मैं भी रो जाऊँगा। तुम्हारे रोने का एहसास करते हुए नहीं बल्कि तकलीफ़ से। तुमने काफ़ी देर से मेरे ज़ख्म पर हाथ रखा है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है।" नौफल ने जितने आराम से बोला, शांति एकदम 4 कदम पीछे हुई। अब वो हांगकांग की तरह नौफल का चेहरा देख रही थी जिस पर दर्द के आसार रकम थे। वो घबराती हुई दोबारा नौफल के पास आई। इसकी शर्ट के बटन खोलकर कंधे से इसकी शर्ट नीचे करके देखने लगी। यहाँ बैंडेज में से खून का सुर्ख धब्बा उभरा हुआ था। शांति का दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर इसको रोना आने लगा। वो दोबारा बहुत आहिस्ता से नौफल के कंधे पर सर टिकाकर रोने लगी। "अब बस यूँ खड़े-खड़े रोते रहना है या फिर मेरे ज़ख्म पर मरहम भी रखना है?" नौफल नरम लहजे में शांति से पूछने लगा। शांति ने बगैर आंसू साफ किए आहिस्ता से नौफल के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। "तुम्हें मालूम है पिस्टल की गोली लगी तो यहाँ बहुत दर्द होता है।" नौफल ने शांति की कमर से हाथ हटाकर अपने दिल के मकाम पर उंगली रखते हुए संजीदगी से बताया। शांति आंखों में आंसू लिए नौफल को देखने लगी। नौफल भी इसी को देख रहा था। शांति ने इसकी उंगली हटाकर दिल के मकाम पर अपने होंठ रखे, फिर पीछे होकर अपने आंसू साफ करती हुई नौफल की शर्ट के बटन बंद करने लगी। "तुम्हें मालूम है गोली लगने के बाद मैं नीचे गिरा था तब मेरा ये गाल बहुत ज़ोर से फर्श पर लगा था।" नौफल अब भी चेहरे पर संजीदगी लाए इसे देखता हुआ बताने लगा।
शांति ने इसकी दुख भरी दास्तान सुनकर एक बार फिर अपने होंठ इसके गाल पर रख दिए। नौफल ने दोबारा इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल किया। एक तो मसला ये है, मर्द रोता बहुत बुरा लगता है। तुम्हें मालूम है, जब वो होश में आया तो मुझे इतना दर्द हो रहा था, मगर मैं फिर भी नहीं रोया। कितना बर्दाश्त किया मेरी आंखों ने। वो अपने चेहरे पर संजीदगी तारी किए शांति को देखता हुआ बोला। शांति ने बारी बारी इसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रखे। तुम्हें मालूम है, होश में आने के बाद डॉक्टर ने 3 घंटे के लिए मुझे कुछ भी खाने पीने से मना किया। मुझे कितनी प्यास लग रही थी इस वक्त। नौफल संजीदगी से शांति के होठों को देखता हुआ बोला, अब तुम बहुत ज्यादा फ्री हो रहे हो। नौफल शराफत से बेड पर वापस बैठ जाओ। शांति भी इतनी ही संजीदगी से नौफल को देखकर कहने लगी, जिस पर नौफल मुस्कुराया। आज मेरा ही दिन है फ्री होने का। शराफत से अपने होठों से मेरी प्यास बचाओ, वरना मेरी बेवक्त की भूख से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। नौफल ने इसे संजीदगी से धमकी देते हुए कहा, शर्म करो नौफल, अपनी हालत देखो, गोली खाकर भी तुम्हारे अरमान नहीं निकले। देखो यहाँ सुकून से और मुझे बैठो यहाँ सुकून से और मुझे बैंडेज करने दो। और नौफल को बेड पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई तो नौफल मुस्कुराने लगा। तभी इसके मोबाइल पर निहाल की कॉल आई। कुछ सोचकर इसने कॉल रिसीव करी। चैन नहीं है तुम्हें, वापस आओ कमरे में। नवीन ने दूसरी बार डांटते हुए अनाया को बोला तो वो मुंह बनाकर बेड पर वापस आकर बैठी। नमीर इसे शांति के कमरे से बुलाने के बाद खुद रिलैक्स होकर बेड पर लेट गया। इसका इस वक्त बातों का मूड हरगिज नहीं था, क्योंकि मुसलसल 8 घंटे की ड्राइविंग के बाद 2 घंटे की नींद लेकर अभी इसकी थकन नहीं उतरी थी, जबकि अनाया सारे रास्ते गहरी नींद में सोती आई थी, इसलिए वो इस वक्त बिल्कुल फ्रेश थी। वो नमीर को बेड पर लेटा हुआ देखकर 2 दफा दरवाजे तक गई ताकि शांति के पास जाकर इससे बातें कर ले, मगर दोनों ही दफा नमीर ने इसे झिड़क कर बेड पर बैठने के लिए कहा। क्या है नमीर, आपको आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना मुझे शांति के पास जाने दे रहे हैं। अनाया तंग आकर नमीर से बोली तो अनाया को घूरने लगा। क्या करना है तुम्हें शांति के पास जाकर, अपने शोर के कमरे में मौजूद होगी वो, तुम भी शराफत से यहीं बैठी रहो। नमीर इसके फूले हुए मुंह को देखकर आंखें दिखाता हुआ बोला, अगर वो अपने शोर के पास मौजूद होगी तो नौफल भाई आपकी तरह सो नहीं रहे होंगे। अनाया को इस वक्त नमीर के सोने से चिढ़ होने लगी। तुम्हें बड़ा मालूम है नौफल भाई का कि वो इस वक्त सो नहीं रहे होंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी नींद आसानी से दूर भगा सकती हो। नवीर ने अपनी तरफ अनाया का बाजू खींचा तो इसके सीने पर आकर गिरी। उफ नवीर, क्या हो गया आपको? हम यहाँ पर गेस्ट हैं, कुछ ख्याल करें। अनाया नवीर को एकदम चार्ज होता हुआ देखकर घबरा कर बोली। इसने उठने की कोशिश की तो नमीर ने इसकी कमर पर अपना हाथ रखकर इसकी कोशिश नाकाम बना दी। तो कौन सा हम गेस्ट के सामने कुछ कर रहे हैं जो वो बुरा मानेंगे? और अभी तुमने खुद ही तो कहा कि नौफल भाई को कौन सा सो रहे होंगे। दूसरी बार इसकी नींद खराब करने पर नमीर अब इसको बख्शने का इरादा नहीं रखता था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि वो लोग ऐसा वैसा कुछ कर रहे हैं? प्लीज मुझसे बातें करें ना नमीर, मैं बोर हो रही हूँ। अनाया की बात सुनकर नमीर ने इसकी कमर से अपना हाथ हटाकर अनाया का सर अपने सीने पर रखा। करो बातें, क्या बातें करनी है तुम्हें? नमीर अपना हाथ एक हाथ से नवीर ने अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखा, दूसरा हाथ अनाया के कंधे के गिर्द लपेटता हुआ बोला, तो मुझे बताएं फरीन, आप इस रात आपसे क्लास रूम में क्यों मिलने आना चाह रही थी? मतलब इन्हें क्या जरूरी बात करनी थी? अनाया नमीर के सीने पर सर रखकर इससे पूछने लगा। तभी चौंक कर नमीर ने अनाया के सर को देखा। ये कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो यार तुम? नवीर ने टालते हुए इसका जवाब दिया। ये बात तो इसके लिए आज भी बेमानी थी। पहले की तरह शांति की सिस्टर आपको लाइक करती थी ना नमीर? अनाया नमीर के सीने से सर उठाकर इसे देखती हुई पूछने लगी। नमीर इसे कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से देखने लगा। मतलब करती थी। अनाया नमीर की खामोशी से देखने पर खुद से बोली, मैंने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा, अब खामोश होकर लेट जाओ। नमीर दोबारा इसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, मिनाल आपी भी तो आपको लाइक करती है ना नमीर? अनाया दोबारा सर उठाकर इसे देखती हुई बोल कहने लगी। तो नमीर इसको घूरने लगा। तुम्हारा शोर तुम्हें लाइक करता है यार, तुम्हारे लिए ये बात मायने रखनी चाहिए। नबीर ने पहले सोचा वो इसको इसी की बातों से तंग करे, मगर अनाया इतनी मासूम शक्ल बनाकर इससे बातें कर रही थी कि इसे अपनी बीवी को अपनी चाहत का यकीन दिलाना पड़ा। तो फिर मिनाल आपी को आपने अपनी जैकेट क्यों दी? मुझे जरा अच्छा नहीं लगा था।
जब उन्होंने वो जैकेट मुझे वापस करी। अनाया खुद से नमीर के सीने पर सर रखकर कहने लगी तो नमीर ने झुककर इसके सर को चूमा। यार तुम भी अभी तक इस बात को लेकर बैठी हो। इसने मुझे वो बाहर वॉक करने का बोला। मैं इसके साथ वॉक करने लगा। इसने मुझसे जैकेट मांगी तो मैं समझा सर्दी लगने की वजह से मांग रही होगी। मुझे इसकी नीयत का अंदाजा नहीं था। वो और कोई चीज दूसरी चीज मांगती तो मैं हरगिज नहीं देता, मगर इसकी फजूल किस्म की ड्रेसिंग को देखते हुए मैंने इसे अपनी जैकेट दे दी, जिसका इसने पूरा फायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया और उल्टी सीधी बातें की तुमसे। नया मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा इससे कोई ताल्लुक होता या मैं इसमें अभी भी इन्वॉल्व होता तो क्या मैं इससे भी शादी नहीं कर लेता? वेल सेटल हूँ, दो बीवियाँ आराम से रख सकता हूँ, मगर मेरा म्यार इन मर्दों की तरह हरगिज नहीं है कि कोई मुझ पर किसी दूसरी चीज को फोकियत दे और मैं इसी के पीछे मरा जाऊं। मनाल ने अपने करियर को चुना, मेरा साथ छोड़ा। अब मैं जिंदगी में कभी भी इसकी तरफ दोबारा माइल नहीं हो सकता। नवीन ने अनाया को मुकम्मल वजाहत के साथ मनाल की तरफ से इत्मीनान दिलाया, मगर अनाया दोबारा इसके सीने से सर उठाकर बैठ गई और कंफ्यूज होकर नमीर को देखने लगी। वो तो ठीक है, मगर आपने दो शादियों की बात क्यों बोली? वेल सेटल होने का मतलब ये तो नहीं कि आदमी दो शादियां कर ले। अनाया नमीर को देखती हुई बोली, जिस पर नमीर के लबों की मुस्कुराहट छू गई। चंदा मिसाल दे रहा था तुम्हें समझाने के लिए, मेरे आगे ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम्हारी कसम। नमीर ने दोबारा इसका बाजू पकड़कर अपने करीब किया और दोबारा इसका सर अपने सीने पर रखा। ऐसी फजूल की मिसालें देकर कोई डराता है अपनी बीवी को? अराया इसके सीने पर सर रखकर शिकवा करने लगी। तुम्हें क्या जरूरत है डरने की? अपनी सहेली से पिस्टल चलाना तुम भी सीख लो, जरा सा भी शक हुआ तो उड़ा देना मुझे। नमीर मजे से मशवरा देता हुआ बोला, जिस पर अनाया ने अल्लाह ना करे बोलकर इसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। कब तक इरादा है वापस निकलने का? सुबह नाश्ते की मेज चारों के अलावा नायला और तब नौफल ने नमीर से पूछा, अभी बहुत ज़रूरी काम बाकी है, इसके बाद चलते हैं। नमीर के जवाब में नौफल बोला तो सब इसकी सिमत देखने लगे। इससे पहले वो अपनी बात की वजाहत करता, इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। ठीक है मैं आता हूँ, नौफल मोबाइल पर बोलता हुआ बाहर दरवाज़ा खोलने गया। नौफल के साथ अंदर आने वाला शख्स को देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। सबसे पहले शांति कुर्सी से उठी और चलती हुई निहाल के पास आई। इससे पहले वो इस पर झपटती या इसका गिरेबान पकड़ती, नौफल ने शांति को दोनों हाथों से पकड़ते हुए काबू किया। शांति रुको, मेरी बात सुनो, नौफल शांति को पकड़ता हुआ बोला, तब अपनी जगह कुर्सी से उठ खड़े हुए। छोड़ो मुझे नौफल, इस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। शांति का बस नहीं चल रहा था वो अपने सामने खड़े निहाल का मुंह नोच ले। यकीनन वो ऐसा ही करती या इससे भी बुरा, अगर नौफल ने इसके साथ सख्ती से दोनों हाथ नहीं पकड़े होते। वो यहाँ माफ़ी मांगने आया है, नौफल इसे पकड़ते हुए समझाने लगा। तब शांति नौफल को धक्का देके जोर से चीखी, किस बात की माफ़ी? इस शख्स का गुनाह माफ़ी लायक है? जानते हो तुम, मेरी बहन जब बेआबरू होकर वापस लौटी थी, मेरी माँ और मेरी क्या हालत थी, कैसी क़यामत गुजरी थी हमारे ऊपर, और मेरी बहन इस पर क्या बीतती थी तुम जानते हो? इस शख्स को, यह आदमी मेरी बहन को बेआबरू करके उसको जख्मी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गया था। आप ही हर मेल डॉक्टर को देखकर, आप हर आदमी को देखकर जोर-जोर से चीखें मारती थी। इस हादसे ने मेरी बहन के दिल में मर्द ज़ात के लिए खौफ बिठा दिया। वो हमें देखकर रोती थी। अब 6 साल गुज़रने के बाद वो नॉर्मल हुई है, मगर वो नॉर्मल होने के बावजूद अब भी नॉर्मल नहीं है। वो मुस्कुराना भूल गई है, खुश हो या दुखी हो, वो कोई रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे इस दोस्त की वजह से। शांति ने नौफल को बोलते हुए निहाल की तरफ रुख करके फर्श पर झुका। निहाल आंखों में नदामत के आंसू लिए शर्मिंदगी से सर झुका गया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी हो गई। शांति अपने आंसू साफ करती हुई कमरे से चली गई, जबकि नायला रोती हुई दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। निहाल चलता हुआ नायला के पास आया और नायला के कदमों में बैठ गया। मेरा गुनाह माफ़ी लायक नहीं, मैंने बहुत बुरा किया आपकी बेटी के साथ। मैं फरहीन का गुनहगार हूँ, मुझे अपने किए गए गुनाह का पछतावा वो पिछले 6 सालों में इतना नहीं हुआ जितना 2 दिन से हो रहा है। अंदर से बहुत बेसुकूनी महसूस कर रहा हूँ मैं। मुझे मालूम आप मुझे माफ़ करें या ना करें, मगर अब मैं कभी भी अपना सर नहीं उठा पाऊँगा किसी के भी सामने। आपके लिए मुझे माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा, मगर मैं चाहता हूँ आप मुझे माफ़ कर दें। अगर दिल से माफ़ नहीं कर सकतीं तो कम से कम मुँह से बोल दें आपने मुझे माफ़ किया, शायद मुझे सुकून मिल जाए। निहाल आँखों में नदामत के आँसू लिए हाथ जोड़कर नायला के सामने माफ़ी माँगने लगा। एक माँ इतना बड़ा दिल कैसे ला सकती है? जिस शख्स ने इसकी बेटी की इज़्ज़त को पामाल किया, वो इसको माफ़ कर दे? बहुत मुश्किल अमल है ये मेरे लिए। अगर मेरे बोलने से तुम्हें सुकून मिलता है तो ठीक है, मैं बोल देती हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ किया और कोशिश भी करूँगी तुम्हें माफ़ कर दूँ। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। नायला उठकर वहाँ से शांति के पास चली गई और इसके पीछे साइमा भी।
नौफल ने आगे बढ़कर निहाल के कंधे पर हाथ रखा। निहाल ने अपने आंसू साफ करके इसे देखा। निहाल उठकर खड़ा हुआ तो नौफल इसे अपने साथ कमरे में ले गया। नमीर खामोशी से सारा ड्रामा देखकर रूम में चला आया। अनाया भी नमीर के पीछे कमरे में चली आई। तो मेरी बहन के लिए तुम्हारा इंसाफ ये कहता है कि हम इसके मुजरम को इसी के साथ ब्याह कर सारी जिंदगी के लिए इसी के हवाले कर दें। वाह नौफल! शाम में जब नमीर, अनाया, शांते, नाइला, साइमा सब मौजूद थे, तब नौफल ने नाइला से फरहीन के लिए निहाल की बात की, जिसका सुनकर सबसे अपनी जगह हैरत ज़दा सब अपनी जगह हैरत ज़दा हुए, मगर शांदे नौफल की बात पर फ़ौरन बोली, ये फ़रहीन के लिए मेरा इंसाफ नहीं कहता शांदे, निहाल को अपने किए गए अमल का एहसास है, वो शर्मिंदा है और अपनी गलती का मुदावा करना चाहता है, खुद इसने मुझसे बात बोली है, तभी मैंने आंटी से ऐसा कहा। नौफल जानता था सबसे पहला एतराज़ इसकी बीवी की तरफ से ही उठना है। निहाल की आमद पर वो इसके रूम से दोबारा नाइला के पास चली गई थी। गलती नहीं, गुनाह किया है तुम्हारे दोस्त ने, और गुनाह की सज़ा होती है मदावा नहीं। मैं वापस जाकर इसके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी। शांता नौफल की बात की तस्दीक करती हुई इसे अपना इरादा भी बताने लगी। ठीक है, मैं इसके गुनाह को नज़र में रखता हुआ इसे अरेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तुम निहाल पर अपनी बहन के रेप का केस फाइल कर देना। अदालत, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाती रहना। हर माह पेशी पर अपनी बहन को लेकर अदालत के चक्कर लगाना, जहाँ इससे खुल्लम खुल्ला सारे सवालात की तस्दीक की जाएगी, जिसके जवाबात इसने आज तक तुम्हें नहीं बताए होंगे, मगर वो सब इसे वहाँ बताना पड़ेंगे। साल, 1.5 साल तक मुकदमा चलता रहेगा। हर माह बाद अगले माह पेशी की तारीख मिलती रहेगी। ये सब बातें जिनके इल्म में अभी तक नहीं आई हैं, इनके सामने भी खुलकर आएंगी, और फिर तुम इनको भी वजाहतें पेश करना। इसके बाद निहाल को 7 से 8 साल तक सज़ा हो जाएगी, और 7 से 8 साल बाद अपनी पूरी सज़ा पूरी करके वो हर चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाएगा। ये ऑप्शन तुम्हारी नज़र में बेस्ट है, या फिर ये कि फ़रहीन अपनी बाकी की ज़िंदगी इसके साथ गुजारे? निहाल वाक़ई शर्मिंदा है। अगर इसने फ़रहीन की ज़िंदगी बर्बाद की है, तो इसे आबाद भी वही करेगा। वैसे वो वापस वापस नॉर्मल लाइफ़ में लेकर आएगा। फौरी तौर पर ना सही, मगर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी लाइफ़ नॉर्मल हो जाएगी। या तुम ये चाहती हो कि सारी ज़िंदगी फ़रहीन बेसहारा और मज़लूम औरतों के बीच में रहकर इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुज़ारती हुई अपने आप को इन जैसा समझती रहे? नौफल की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांते चुप हो गई। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी बहन अपनी बाकी की ज़िंदगी इस इंसान के साथ गुज़ारे, जिसने इसकी ज़िंदगी ख़राब की। शांते को नौफल को देखती हुई बोली, तो अब वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इसकी ज़िंदगी सँवारेगा, तो इसमें हर्ज क्या है? नौफल भी शायद इससे बहस के मूड में लग रहा था, जब भी संजीदगी से बोला, अपने दोस्त की वकालत करना बंद करो नौफल। तुम्हारी ईमानदारी की नशर खबरें मैं टीवी पर देख चुकी हूँ। अब वैसे ही ईमानदारी से अपना फर्ज निभाओ और अरेस्ट करो अपने दोस्त को। शांते की बात पर नौफल ने गुस्से में घूरकर इसे देखा, और इससे पहले वो कुछ दोबारा शांते को बोलता नाइला बोल उठी, फरहीन की जिंदगी का फैसला तुम नहीं कर सकती शांते, मैं माँ हूँ उसकी, जैसा मैं चाहूंगी वही करूंगी। तुम कल नौफल के साथ अपने घर वापस जाने की तैयारी करो, और नौफल आप थोड़ी देर बाद निकाह ख़वा को लेकर आ जाओ। फ़रहीन से मैं बात करती हूँ। नायला के बोलने पर कमरे में मौजूद सब अफराद इसी की तरफ देखने लगे। अम्मी आप क्या कर रही हैं? अगर वो दामाद है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसकी हर बात मानेंगी। शांते नायला को देखती हुई बोली, मैं किसी की बात नहीं मान रही। जो मुझे फ़रहीन के लिए सही लगेगा मैं वो करूँगी। आप अपनी ज़ुबान चलाए बगैर कमरे से जाओ। नायला आंखों से शांते को तनबीह करते हुए बोली। शांते नौफल पर नाराज़ निगाह डालकर वहाँ से चली गई। तो दोस्ती का फर्ज निभाया जा रहा है। गुड शांति के रूम से जाते ही अनायत के पीछे चली गई, जबकि साइमा और नाइला दूसरे खवातीन वाले पोर्शन में चली गई फरहीन से बात करने। तब नमीर नौफल को देखता हुआ बोला, तो तुम ऐसा नहीं चाहते, तुम भी शांति की बात से एग्री करते हो? नौफल नमीर को देखता हुआ पूछने लगा। अपनी जगह वो भी गलत नहीं है, जाहिर बात है फरहीन इसकी बहन है, इसलिए तुम्हारी इसका इसलिए इसका दिल दुखा हुआ है अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादती पर, इसलिए वो तुम्हारी तजवीज़ कबूल नहीं कर पा रही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है निहाल के लिए यही सज़ा काफ़ी है? नबीन नौफल को देखता हुआ पूछने लगा। यार निहाल को इसके किए की सज़ा देने वाले हम कौन होते हैं? नमीर इसे इसके गुनाह की सज़ा ऊपर वाले से मिल चुकी है। वो 2 माह तक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहा। जैसे इसने सच्चे दिल से चाहा वो इसके भाई की ज़िंदगी में शामिल है, इसकी भाभी के रूप में। वो अपने गुनाह की वजह से अब सारी ज़िंदगी किसी के सामने नज़र नहीं मिला पाएगा। वो वाक़ई बहुत शर्मिंदा है नमीर। कल इसने मुझे खुद कॉल की थी, वो यहाँ नायला आंटी से माफ़ी माँगने आना चाहता था, और आज सुबह इसने खुद मुझसे कहा वो फ़रहीन को नॉर्मल लाइफ में वापस लाना चाहता है। शायद इस तरह वो रिलैक्स हो जाए, इसे सुकून मिल जाए। मुझे लगता है अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो तो इसे एक मौका मिलना चाहिए।
नौफल नमीर के सामने अपनी राय देता हुआ बोला, और तुम्हारी बीवी जो तुमसे अच्छा खासा नाराज हो गई है, इसका क्या करोगे? नमीर अब भी संजीदगी से इससे पूछ रहा था, जिस पर नौफल ने इसको मुस्कुरा के देखा। वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, मुझसे मना लूंगा। नौफल की बात पर नमीर मुस्कुराया। ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, बस गुस्से में गोली मार सकती है। नमीर की बात सुनकर नौफल ने घूर कर इसे देखा। ऐसे ताने तुम मुझे नहीं दो, ये ताने मैं अपनी बीवी को अगले 10 साल तक देने का इरादा रखता हूँ। नौफल की बात सुनकर नमीर दोबारा मुस्कुराया। मुझे मालूम है तुम कितने बड़े जन मुरीद हो, ये ताने तुम कभी नहीं दे सकते अपनी बीवी को। नमीर की बात सुनकर नौफल भी हंसा। चलो अब मेरे साथ निकाह के लिए के कुछ इंतजामात कराओ। मेरा अकेले दोस्त का नहीं मेरा अकेले का दोस्त नहीं लगता, वो तुम्हारा भी भाई है। नौफल इसे बोलता हुआ बाहर निकला। नमीर भी गाड़ी की चाबी पॉकेट में चेक करता हुआ इसके पीछे निकल गया। मालूम नहीं नाइला और साइमा ने फरहीन को कैसे और क्या कहकर निकाह के लिए राजी किया। घर में चंद खवातीन और घर के अफराद के सामने इसका निकाह निहाल से पढ़ाया गया, जबकि शानदे इन सब में शामिल ना हुए बगैर नाइला के कमरे में बैठी रोती रही। वो नौफल के पास इसके कमरे में भी नहीं जा रही थी। नौफल ने भी अभी खामोशी बरती। वो इसे अपने साथ वापस ले जाकर इसे मनाने का इरादा रखता था। फरहीन को इस वक्त साइमा खाला के घर वाले पोर्शन में लाकर एक बेडरूम में बैठाया गया। इसका दिल अब इन औरतों के दरमियान ही लगता था। साइमा और नाइला बहलाकर इसे अपने साथ लाई थी। फिर नाइला ने बहुत प्यार से इसे समझाया कि आज इसका निकाह है, वो एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ का मान रख ले और निकाह के लिए राजी हो जाए, जिस पर फरहीन बहुत रोई। इसे साइमा और नाइला ने बहुत प्यार किया। इसे अपनी छोटी शानदें नहीं दिखाई दे रही थी कल से, मगर अब वो अपने दिल में आई बात किसी से पूछती नहीं थी, दिल में ही रखती थी। मगर छोटी को इस वक्त इसके पास आना चाहिए था। नायला एक खूबसूरत लड़की को इसके पास लेकर आई। नायला ने बताया कि शानदे की दोस्त है, बहुत प्यारी सी लड़की, इससे बहुत प्यार से मिल रही थी। इससे बहुत कम लोग प्यार से मिलते थे। ज्यादातर लोगों की आंखों में इसके लिए अफसोस, तरस, रहम और कभी कभी कराहियत भी होती थी। जब निकाह का वक्त आया, इसे रजामंदी पूछी गई। निहाल के नाम पर वो खौफजदा नजरों से नायला को देखने लगी। मेरी लाज रख ले बेटा, कबूल कर ले। नायला के अल्फाज पर इसने निकाहनामे पर यह सोच कर साइन किया, वो अपनी इज्जत गंवाकर एक दफा अपनी माँ की लाज नहीं रख सकी थी, अब दोबारा वो ऐसे कैसे कर सकती थी। बहुत सारे आंसू इसकी आंखों से गिरे, जिसके साथ इसने निकाहनामे पर साइन किए। दरवाजे खुलने की आवाज पर फरहीन की सोचों का इर्तिकाज टूटा। आने वाले शख्स को इसने अपने सामने खड़ा देखा तो हैरत और खौफ से इसकी आंखें खुल गईं। जिस्म के ऊपर जैसे चूंटियां रेंगने लगी। वो तेजी से उठकर खौफ के मारे दीवार से जा लगी। निहाल बहुत सारी हिम्मत जमा करके फरहीन के पास कमरे में गया था। इसकी नजर फरहीन पर पड़ी तो चौंक गया। वो इस फरहीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो 6 साल पहले इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वक्त और हालात ने इसे इसकी उम्र से बड़ा कर दिया था। वो अपनी उम्र से 3-4 साल बड़ी लग रही थी। दुबली पतली हड्डियों का ढांचा, वक्त से पहले जगह जगह बालों में आई चांदी, चेहरे की रौनक भी इस हादसे ने छीन ली थी। इसकी हालत देखकर निहाल को मजीद पछतावे ने घेरा। फरहीन इसे देखकर पहचान गई थी। तभी वो खौफजदा होकर दीवार से जा लगी, जैसे अपने लिए कोई जाए पनाह तलाश कर रही हो। निहाल को मजीद शर्मिंदगी होने लगी। फरहीन मुझे माफ कर दो, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं अपना ही गुनाह पर शर्मसार हो। बहुत बेसुकूनी है मुझे। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा दिल पर बोझ बढ़ता रहेगा। मैंने तुम्हारे साथ साथ अपने साथ भी ज्यादती की है। आज मुझे एहसास हो रहा है इज्जत कितनी कीमती चीज होती है। मैंने इस वक्त अपने नफ्स पर काबू ना पाकर तुम्हारी इज्जत को पामाल किया था। देखो आज मेरे अपनों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां बिखरी हैं। मैं नमीर, अनाया, नौफल, शानदे किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। मैं इसी का मुस्तहिक हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। निहाल फरहीन के करीब आकर इससे माफिया मांगने लगा। वो दीवार से चिपक कर नीचे फर्श पर बैठती चली गई। अब वो दोनों ही जमीन पर बैठे हुए रो रहे थे। निहाल वाकई अपने किए पर नादिम था। इसके सामने जमीन पर बैठा हाथ जोड़ कर रो रहा था। तुमने मेरी इज्जत नहीं छीनी, मुझसे मेरी जिंदगी की हर खुशियों से महरूम कर दिया, मेरा दिल अंदर से मार दिया, मेरी मुस्कुराहट तुम छीन चुके हो, जिंदगी की उमंग, जिंदा रहने की ख्वाहिश, सब कुछ। अब कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे किसी चीज की चाह नहीं बची। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, मेरे पास बचा ही क्या है तुम्हें देने के लिए? तुम मेरा सब कुछ छीन चुके हो निहाल। अब तुम्हें मुझसे माफी चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मुख्तसर से जुमले बोलने वाली फरहीन 6 साल बाद बोली थी।
मैं वाक़ई तुमसे सब कुछ छीन चुका हूँ, मैं इस लायक नहीं कि मुझे माफ़ किया जाए, मगर मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारा दिल दोबारा आबाद कर दूँगा। तुम्हारे होठों से मुस्कुराहट छीनी है तो मैं ही इन पर मुस्कुराहट लेकर आऊँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दूँगा, तुम्हें दोबारा ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा, प्रॉमिस है मेरा तुमसे। निहाल अपने चेहरे से आँसू साफ करता हुआ ये सब जैसे फ़रहीन से नहीं खुद से अहद कर रहा था। इसने जब फ़रहीन के आगे अपना हाथ बढ़ाया तो फ़रहीन रोते हुए इसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। निहाल ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। फ़रहीन को मज़ीद रोना आया तो निहाल इसके आंसू पोंछने लगा। भाभी प्लीज़ यार, बोले ना मेरी बात मानेंगी। नौफल पुलिस स्टेशन से घर में दाखिल हुआ तो उसे खुर्रम की आवाज़ अपने बेडरूम से आती सुनाई दी। वो शांति से किसी बात की मिन्नतें कर रहा था। कल ही इन सब की कोयटा से वापसी हुई थी। शांति अभी भी नौफल से नाराज़ था। क्या बातें मनवानी है तुमने अपनी भाभी से? बहुत काम ही किसी को खातिर में लाती है मेरे भाई। नोबल बेडरूम में आकर बेड पर नींदराज होता हुआ खुर्रम से बोला, भैया आपका और मेरा मामला अलग है। आपको बेशक वो खातिर में ना लाए, मगर मैं इनका बहुत प्यारा देवर हूँ। क्यों भाभी, एग्री करती है ना आप मेरी बात से? खुर्रम नौफल को चिढ़ाकर शांति से पूछने लगा, तुम्हारी बात से मैं एग्री करती हूँ और तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ, मगर चॉइस मेरी भी होगी। मैं ओके करने के बाद भी बात आगे करूंगी। वो नौफल को यकसन नज़रअंदाज करती हुई खुर्रम से बोली, ओ ग्रेट यार, फिर कल का ही डन कर लेता हूँ और इसके बाद सारा कुछ आपको भी संभालना है। अब मैं चला। खुर्रम और वो न जाने कौन-सी अपनी बातें कर रहे थे। बात मुकम्मल होने पर खुर्रम खुश होकर कमरे से निकल गया। ए ज़ालिम हसीना, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना ज़रा। नौफल ने बेड पर लेटे शांति को देखकर मुखातिब किया जो दूर रखी चेयर पर बैठी थी। शांति अपनी रूम का दरवाज़ा बंद करके नौफल के पास आई। अब तो मैं तुम्हें और भी ज़ालिम लगूँगी। गोली क्यों चला चुकी हूँ तुम पर? अब तुम्हें ज़रा मोहतात रहना चाहिए। शांति की बात सुनकर नौफल ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाई। इसका हाथ थामकर बेड पर अपने पास बैठाया, खुद भी उठकर बैठ गया। तुम्हारे हाथ का थप्पड़ खाया, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। अब गोली खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इश्क हो जाएगा। काफ़ी खराब निशाना है वैसे तुम्हारा। दिल को छूते-छूते रह गई तुम्हारी चलाई गई गोली। नौफल इसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला तो शांति ने इसके सीने पर सर रखा था। बहुत फजूल बोलते हो तुम। अम्मी न जाने क्यों साइमा खाला के पास रुक गई। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही है नौफल आपी की। वो आदी नहीं है इस तरह अजनबी माहौल में सबके साथ रहने की। शांति फरहीन के लिए अपनी फिक्रमंदी जाहिर करते हुए बोली, कोई भी लड़की आदी नहीं होती, सबको ही एडजस्ट करना पड़ता है यार। अब इसे अपने शोहर के साथ ही रहना है, आदत तो डालनी होगी। तुम बताओ इस तरह कमरे में क्यों बैठी थी? नौफल प्यार से शांति को समझाता हुआ बोला, तुम्हारी अम्मी मुझसे नाराज़ है नौफल, बताओ मैं इनको कैसे मनाऊँ? इनको खाने में क्या डिश पसंद है? बल्कि ऐसा करते हैं इनके लिए शॉपिंग करके आते हैं, फिर वो खुश हो जाएँगी। फरीदा से जब वो फ़ोन पर बात करती थी, फरीदा बहुत अच्छे तरीके से इससे बात करती थी, मगर आज वो काफ़ी रूखे-फीके लहजे में शांति से बात कर रही थी। जो शांति को काफ़ी फ़ील हुआ, मगर शांति को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए अब इसे ही अपनी सास को मनाना था। शॉपिंग और खानों से तो वो नहीं मानेंगी, अब तो एक ही तरीका है इनको मनाने का। नौफल इसे बाहों में लेता हुआ संजीदगी से बोला, क्या? शांति नौफल से पूछने लगी, यही कि अब हमें इनको जल्द से जल्द दादी बनाने के बारे में सोचना चाहिए, वो भी पूरी संजीदगी के साथ। नौफल शरारत भरे अंदाज में कहता हुआ इसे बेड पर लेटाकर इस पर झुका। नौफल पीछे हटो, ये कौन सा वक्त है? शांति से ओवर होता देखकर आंखें दिखाकर बोली, यार तुम्हारे मूड की वजह से ना मेरे चुन्नू मुन्नू दुनिया में आने से लेट हो रहे हैं। प्लीज़ इतनी जालिम ना बनो। अब तो कमिश्नर साहब भी छुट्टियां गुजार कर वापस आ गए हैं, वो फिर से मेरी नाइट ड्यूटी लगा देंगे। नौफल बेचारगी से बोला तो शांति हंस दी। बिल्कुल सही ड्यूटी लगाते हैं तुम्हारे कमिश्नर साहब। अच्छा मेरी बात सुनो, और खुर्रम को एक लड़की पसंद है, वो मुझे उससे मिलवाना चाहता है। अब अम्मी को मनाने का काम तुम्हारा है, क्योंकि आंटी तो खुर्रम की नहीं मानेंगी और तुम बातों ही बातों में इन्हें आराम से मना सकते हो। शांति नौफल को खुर्रम की बात बताने लगी, मगर वो अपने ही काम में मगन हो चुका था। कोयटा से रुखसत होने पर फरहीन को मालूम हुआ अनाया इसकी देवरानी थी, यानी नमीर की बीवी। तो वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। नमीर की बीवी इतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए थी। काफ़ी साल बाद इसने नमीर को देखा, मगर इसे देखकर अब इसका दिल बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में धड़क रहा था, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। नमीर और नौफल दोनों ने फरहीन से अपनी शरारत की माफ़ी मांगी। जब इसने निहाल को माफ़ कर दिया था, तो फिर वो इन दोनों को कैसे माफ़ नहीं करती। नमीर ने हाल अनाया के अलावा एक नया चेहरा देखकर सरवत को काफ़ी हैरत हुई। इसके सवालात पर नमीर ने सरवत को
کیا کہہ کر مطمئن کیا نہال نہیں جانتا تھا، مگر اسے معلوم تھا ثروت کو نمیر نے اس کی طبیعت کے پیش نظر سچ ہرگز نہیں بتایا ہوگا۔ جو بھی تھا، ثروت نے فرحین کو بہو کے روپ میں قبول کر لیا اور اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ گھر کا ہر فرد اس کا خیال رکھ رہا تھا، وہ عنایت سے جلد گھل مل گئی تھی۔ ثروت بھی اس سے شفیق خاتون لگی۔ اس نے صبح نہال کے آفس جانے کے بعد ہی بھی کچھ الٹا سیدھا سوال نہیں کیا۔ وہ اس سے چھوٹی موٹی باتیں، اس کی پسند ناپسند، کوالیفیکیشن وغیرہ پوچھتی رہی۔ دوسری طرف نمیر اس سے فرینک ہو کر بات کر رہا تھا۔ وہ پہلے کبھی یونیورسٹی میں اس سے فرینک نہیں ہوتا تھا، مگر اب اسے نارمل گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ فرحین ابھی اپنے کمرے میں مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتارا تھا کہ نہال کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر موجود تھا جس میں سے گجرے نکال کر وہ فرحین کو پہنانے لگا۔ یہ کیوں لائے ہو تم؟ فرحین نہال کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ فرحین کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے ان کی مہک بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا جب بھی میری شادی ہوگی تو میں اپنی بیوی کو گجرے لا کر پہنایا کروں گا۔ نہال اس کو گجرے پہناتا ہوا بتانے لگا۔ تم نے اپنی شادی کے متعلق مجھے تو نہیں سوچ رکھا ہوگا، کوئی تو ہوگی تمہاری زندگی میں جسے تم… فرحین کی بات مکمل ہونے سے پہلے نہال اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ چکا تھا۔ اب میں صرف تمہارے متعلق سوچتا ہوں اور سوچنا چاہتا ہوں، نہال اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ وہ فرحین کو دیکھ رہا تھا۔ نماز کے دوپٹے میں لپٹا ہوا اس کا چہرہ نہال کو بھلا لگا۔ تم پر اس اسٹائل میں دوپٹہ کافی سوٹ کر رہا ہے، اچھی لگ رہی ہو تم، نہال نے فرحین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں نکاح کے بندھن میں تو بندھ چکے تھے، مگر رشتے کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ مجھے خوش رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم میری تعریف کرو، فرحین نہال کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ تب نہال نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فرحین کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ تعریف میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کی ہے فرحین، میں نے یہ بات دل سے بولی ہے۔ نہال فرحین کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ نہال پلیز نہیں، فرحین کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے التجائی انداز میں کہا۔ ویسے ہی نہال نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیے اور خود بھی پیچھے ہوا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا فرحین، نہ ابھی نہ آگے، زندگی میں کبھی، پلیز اب رونا نہیں، نہال اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ شاید فرحین نے نکاح تو کر لیا تھا، مگر وہ ایک دم اتنی جلدی اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس معاملے میں نہال پوری طرح فرحین کی رضامندی چاہتا تھا۔ اوکے ایسا کرتے ہیں، آج ہم دونوں باہر ڈنر کرتے ہیں، نہال اپنا موڈ فریش کرتا ہوا بولا اور فرحین کو اپنا پروگرام بتانے لگا۔ مجھے بھیڑ پسند نہیں ہے نہال، لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے اب، فرحین بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ نہال بھی اس کے برابر میں بیٹھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ معلوم ہے فرحین، تم بہت پیارے دل کی لڑکی ہو، میرے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر کے تم نے ظرف دکھایا ہے۔ مجھے واقعی خوشی ہوگی اگر میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ کیا تم میری خوشی کی خاطر ڈنر پر چل سکتی ہو؟ بھیڑ تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، ہم اپنے لیے کیبن بک کروا لیں گے، نہال اس کا ہاتھ تھامتا ہوا مسکرا کر پوچھنے لگا تو فرحین نے اسے دیکھ کر اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے لگ رہا تھا آسان نہیں ہے، پر اب لگتا ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے، نہال فرحین کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ فرحین نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگی۔ تم سے محبت کرنا، نہال مسکراتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نمیر صبح کے وقت آفس میں نہال کے روم میں آفس کے ہی کا کسی کام سے آیا۔ نہال اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ پر نمیر کی نظر پڑی تو آسٹریلیا سے میل آئی ہوئی تھی۔ ای میل پڑھنے کے بعد اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ویسے ہی نہال دروازہ کھول کر اپنے روم میں آیا۔ یہ کیا ہے نہال، تم نے آسٹریلیا میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے؟ نمیر حیرت سے نہال کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں اگلے ماہ فرحین کے ساتھ آسٹریلیا شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہال نے ایک نظر اپنے لیپ ٹاپ پر ڈال کر اپنے فیس ایکسپریشن نارمل رکھتے ہوئے نمیر کو جواب دیا۔ مگر کیوں؟ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ نمیر اب بھی اسے حیرت سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا وجہ تمہیں معلوم نہیں؟ نہال نمیر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے تمہارے آسٹریلیا شفٹ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز اب یہ مت بولنا کہ تم شرمندہ ہو اس لیے یہاں رہ کر کسی کو فیس نہیں کر پا رہے ہو، نمیر نہال کو دیکھتا ہوا چڑھ کر بولا۔ ایسا ہی ہے نمیر، نہال نمیر کے جواب میں بولا۔ نمیر نے لمبا سانس کھینچا۔ شرمندگی سے منہ چھپا کر تمہیں جب جانا پڑتا جب فرحین زندہ نہیں ہوتی، تب تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اب جب کہ تم فرحین سے شادی کر چکے ہو، نائلہ آنٹی اور فرحین تمہیں معاف کر چکی ہیں، سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، تو پھر یوں جانے کی وجہ؟ نمیر نہال کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میرے اور فرحین کے بیچ سب کچھ نارمل نہیں ہے، آئی تھنک ہمارے رشتے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، نہال نے ایک جواز پیش کیا۔
जो शादियाँ नॉर्मल नहीं होती इनका रिलेशन भी नॉर्मल नहीं होता और सब कुछ तुम यहाँ अपनी फैमिली के बीच में रहकर नॉर्मल कर सकते हो। अगर अकेले बाकी फैमिली से दूर तन्हा रहकर हस्बैंड वाइफ के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता तो मैं भी अनाया को लेकर कब का जा चुका होता। तुम हमसे दूर जाकर ना सिर्फ मुझे और मम्मा को तन्हा कर रहे हो बल्कि खुद को भी अकेला कर रहे हो और फरहीन को भी इसकी बहन से दूर कर रहे हो। निहाल प्लीज़ इस तरह मत करो। नवीर ने निहाल को समझाना चाहा। ये तुम कह रहे हो, तुम्हें मालूम है ना मैं कितना खुदगर्ज हो गया था। मैंने सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हुए तुम्हें अनाया से दूर करना चाहा। मैं किस-किस बात से शर्मिंदा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। निहाल नमीर से नज़र चुराता हुआ बोला, निहाल तुम मेरे भाई हो, एक ही भाई। मैं तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ मगर तुमसे नफ़रत बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जबकि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो प्लीज़ यूँ मुझे और मम्मा को तन्हा मत करके जाओ यार। मैं वैसे भी तुम्हारे कोमे में जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था। अब दूसरी बार अकेला नहीं होना चाहता। नमीर के बोलने की देर थी, निहाल ने इसे गले लगा लिया। आज इसे लगा रिश्तों के मामले में वो कितना खुशनसीब है। इसका छोटा भाई इसे कितना प्यार करता है। इन दोनों के गले लगने से वक्ती की ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी थी। ये मेरी आंखें कौन सा जज्बाती मंजर देख रही हैं भाई? मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया तुम दोनों ने ज़ालिमों? नौफल दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। निहाल और नमीर को गले लगे देखकर मासूमियत से बोला। इस पर निहाल मुस्कुराता हुआ जो नमीर से अलग हुआ नौफल की तरफ बढ़ता हुआ इसे भी गले लगा लिया। मुझे हमेशा तुम्हारी दोस्ती पर फ़ख्र रहेगा निहाल, इसके गले लगते हुए बोला। नौफल का रुख नमीर की तरफ था। नौफल इशारे से नमीर से पूछने लगा कि क्या सीन है? ये तुम्हें गले इसलिए लगा रहा है ताकि तुम्हारे जूतों से बच जाए। तुम्हारी साहिली साहबा के साथ मौसूब ऑस्ट्रेलिया भागने का प्लान बना रहे थे। नमीर इसका इशारा समझते हुए नौफल को बताने लगा। निहाल मुस्कुराता हुआ नौफल से लग हुआ। ओ मेरे भाई ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ, ऐसा कभी सोचना भी मत वरना मेरी बीवी अपनी बहन की जुदाई में मेरा जीना हराम कर देगी। बात बात पर शान से मुझे ताने देगी, क्यों कराई तुमने मेरी बहन की शादी इस भगोड़े के साथ। नौफल की बात सुनकर एक बार फिर नमीर और निहाल हंस दिए। सुना है तुमने कोयटा जाकर शादी कर ली? ऐसी ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो अपनी माँ और खाला जाने का ख्याल भी नहीं आया? इशरत निहाल की शादी की खबर सुनकर मिनाल के साथ सरवत से मिलने पहुंच गई। निहाल और नमीर ऑफिस इसी वक्त आए थे। सरवत के अलावा इस वक्त ड्राइंग रूम में निहाल और फरहीन भी मौजूद थे। तब इशरत में ने निहाल से तब इशरत निहाल से बोली, फरहीन को देखकर इश्क हो गया था खाला जानी, जब भी दूसरी बार मंगनी या मेहंदी का चांस नहीं लिया, बस जल्दी से निकाह कर लिया। अब आप भी मिनाल के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ही लें। निहाल ने इस इशरत को देखते हुए कहा जबकि फरहीन निहाल की बात पर इसको देखने लगी। देख तो मिनाल भी इसको रही थी। आखिर निहाल ने अचानक शादी कैसे कर ली? मिनाल को समझ में नहीं आया। मिनाल के लिए कोई लड़कों की कमी है क्या? हो जाएगी इसकी शादी। मेरी बेटी की कौन सी उम्र निकली जा रही है? इशरत इतराती हुई बोली। इसे निहाल की गूंगी बीवी जरा अच्छी नहीं लगी जो कब से खामोश बैठी हुई थी। अल्लाह अब सब लड़कों पर रहम करे अपना। ओके खाला जानी डिनर पर मिलते हैं, अभी ऑफिस से आया हूँ, ज़रा रेस्ट करूँगा। फरहीन ज़रा रूम में आना। निहाल इशरत को बोलता हुआ साथ ही फरहीन को भी ले गया क्योंकि वो काफ़ी देर से इशरत के घूरने और बातों पर नर्वस हो रही थी। छोटी बहू कहाँ है आपकी आपा? ज़रा आदाब नहीं सिखाए आपने इसे कि घर आए मेहमानों को भी सलाम कर लिया जाता है। निहाल और फरहीन के उठने के बाद इशरत की तोपों का रुख अब अनाया की तरफ हो गया। इसको मालूम नहीं होगा इशरत वरना वो सलाम ना करे ऐसा मुमकिन नहीं। किचन में मसरूफ़ होगी बेचारी। आज सुबह ही नमीर नाश्ते पर इसे बिरयानी खाने की फरमाइश कर रहा था। सरवत का जवाब सुनकर इशरत मुंह बनाती हुई चुप हो गई जबकि मिनाल उठकर ड्राइंग रूम से निकल गई। फरहीन कुछ कहना चाह रही हो या कुछ कोई बात है तो बोलो। निहाल ड्रेस चेंज करके निकला तो फरहीन अभी तक सर झुकाए बेड पर बैठी बेडशीट के डिजाइन पर उंगली फेर रही थी। निहाल की बात पर सर उठाए वो इसे देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? फरहीन निहाल को देखकर पूछने लगी। एक हफ्ते में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है। एक साल गुजरेगा तो मुझे यकीन है मैं तुम्हारे दिल में छुपी बात खुद से कह दिया करूंगा। निहाल मुस्कुराता हुआ फरहीन को देखकर बोलने लगा। तब फरहीन खामोश होकर इसे देखने लगी। अभी वहां तुमने सबके सामने कहा दूसरी बार मंगनी या मेहंदी का चांस लिए बगैर झट से निकाह कर लिया, मतलब तुम्हारी पहले। फरहीन कुछ सोचते हुए बोली फिर खामोश हो गई। मेरी पहले अनाया से शादी होने वाली थी, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इसकी शादी नमीर से हो गई। होश में आने के बाद मुझे सबके साथ साथ खुदा से भी शिकवा था मगर अब समझ में आया जो हुआ बहुत अच्छा हुआ।
یہ بات بالکل ٹھیک کہی جاتی ہے، ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ نمیر کی شادی عنایہ سے ہونا قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ تمہیں میری زندگی میں آنا تھا۔ نہال دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ فرحین غور سے نہال کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ یہی سچ سوچ رہی ہوں کہ میں عنایہ کو پسند کرتا تھا۔ دیکھو میں ابھی بھی تمہارے دل کی باتیں جاننے لگ گیا ہوں۔ نہال مسکراتا ہوا فرحین سے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے اقرار نہیں کیا نہال کی بات کا، مگر وہ سچ میں یہی سوچ رہی تھی۔ نہال نے فرحین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ فرحین، محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تمہیں بھی تو نمیر پسند تھا نا؟ مگر مجھے معلوم ہے اب وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک وقت آئے گا جب عنایہ کا تصور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دو ایسے لوگ جن کو محبت نہ ملے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پارٹنر کی فیلنگ کو سمجھتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے۔ نہال اس کا ہاتھ تھامے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ فرحین ابھی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر ہم دونوں یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کو زندگی میں ان کی محبت ضرور ملے۔ نہال اب شرارت سے فرحین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ بچہ؟ فرحین نہال کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالتی ہوئی حیرت سے بولی۔ ہاں، ہم دونوں کا بچہ۔ نہال نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ وہ پریشان ہو کر نہال کو دیکھنے لگی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 سال تک بھی انتظار کر سکتا ہوں، نہال مسکراتا ہوا فرحین سے کہنے لگا۔ تو فرحین سر جھکا گئی۔ یار عنایہ، میری بلیک شرٹ کہاں پر رکھ دی تم نے؟ نمیر ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا۔ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ وارڈروب میں اپنی شرٹ دیکھتا ہوا عنایہ کو بولا۔ مگر جب اس کی نظر دروازے پر پڑی، تم؟ نمیر کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ وہ وارڈروب کا دروازہ بند کرتا ہوا مینال کو دیکھ کر بولا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے نمیر۔ مینال اس کے قریب آتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ اوکے، جو بھی بات کرنی ہے ڈرائنگ روم میں چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ نمیر کو یوں مینال کا اپنے بیڈ روم میں آنا اچھا نہیں لگا، مگر وہ چہرے کے تاثرات نارمل رکھتا ہوا بولا۔ ڈرائنگ روم میں نہیں، یہاں اکیلے بات کرنی ہے مجھے۔ دیکھو میں جانتی ہوں میں تمہیں اپنی بے وقوفی سے کھو چکی ہوں، مگر مجھے اب احساس ہو گیا اپنی غلطی کا۔ پلیز نمیر، سب بھول جاؤ، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ ایسے تو نہیں ہے نا؟ صرف میں نے تم سے محبت کی تھی، بے شک اظہار پہلے میں نے کیا تھا، مگر تم بھی تو چاہتے تھے نا مجھے۔ اور یہ دیکھو اس تصویر میں نہال نے کیسے عنایہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ عنایہ کے دل میں ابھی تک تمہارا بڑا بھائی بستا ہے، جیسے ابھی تک تم میرے دل میں بستے ہو۔ نہال اگر شادی نہیں کرتا تو عنایہ خود تم سے علیحدگی لے کر منال اپنے موبائل میں ثبوت کے طور پر عنایہ نہال کی تصویر دکھانے لگی، مگر نمیر کے پڑنے والے تھپڑ سے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ منال بے یقینی سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بولا تھا تم جو بھی بات کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ ایک طرف میرا بھائی ہے، دوسری طرف میری بیوی۔ تم ہوتی کون ہو عنایہ کے کردار کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے والی؟ عنایہ کس کردار کی مالک ہے یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے زیادہ اچھی طریقے سے اپنی بیوی کو جانتا ہوں، اور اب میں تمہیں بھی جان گیا ہوں۔ ہاں، میں پہلے تمہیں چاہتا تھا، مگر مجھے تب تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم ایک گری ہوئی لڑکی ہو، اور آج کے بعد تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئندہ اگر تم نے عنایہ کے خلاف میرے سامنے یا کسی کے بھی سامنے زہر اگلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ہرگز نہیں بخشوں گا۔ نمیر اسے وارن کرتا ہوا بولا اور اپنے کمرے سے باہر جانے لگا۔ تبھی منال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اوکے، میں اب عنایہ کے بارے میں تم سے کچھ نہیں بولوں گی، مگر میں گری ہوئی ہرگز نہیں ہوں، پیار کرتی ہوں تم سے، ٹھیک ہے؟ تم عنایہ کو بھی اپنی زندگی سے مت نکالو، مگر مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، منال روتی ہوئی نمیر سے کہنے لگی، اور اچانک اس سے سینے سے لگی۔ اس سے پہلے وہ اسے خود سے پیچھے کے دور کرتا، اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایہ اندر آئی۔ وہ اندر کا منظر دیکھ کر وہیں رک گئی۔ نمیر نے منال کا پیچھے دھکا دیا۔ اب وہ عنایہ کو دیکھ رہا تھا، اور عنایہ چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے منال کو، کم از کم آپ میں اتنے ایٹیکیٹس تو ہونے چاہیے منال آپی کے، یوں کسی میرڈ کزن کے بیڈ روم میں اتنے دھڑلے سے نہیں آیا جاتا۔ مجھے جہاں نمیر نے میسج کر کے بلایا تھا۔ منال کی بات سن کر نمیر کو آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے وہ منال کو اپنے بیڈ روم سے دھکا دے کر نکالتا۔ ایک منٹ نمیر، مجھے بات کرنے دیں منال آپی سے۔ عنایہ نمیر کا غصہ دیکھ کر اس سے بولی، اور کتنا گرائیں گی آپ خود کو منال آپی میری نظروں میں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے، ایک شوہر اور اس کی بیوی کے بیچ میں نااتفاقی پیدا کرتے ہوئے، یہ اونچی حرکتیں کر کے خدارا آپ اپنے آپ کو میری اور نمیر کی نظر میں خود کو نہ گرائیں۔ آپ تو اپنے آپ کو عورت کے معیار سے گرانے پر تل گئی ہیں۔ مجھے اپنے شوہر پر اپنے سے زیادہ بھروسہ ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ بھی بول کر مجھے نمیر سے بدگمان نہیں کر سکتی۔ عنایہ کی باتیں سن کر منال ایک
ایک پل کے لیے کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ تو کبھی اس کے سامنے زبان تک نہیں چلاتی تھی، آج کیسے اس کے سامنے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی۔ یقیناً یہ نمیر کی محبتوں کا ہی اعجاز تھا، اس کا فراہم کردہ اعتبار بھی۔ میری جان جانے دو اسے، اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، نہیں جانتی کہ ہم دونوں کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ نمیر عنایہ کے پاس آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کر کے دوسرا ہاتھ عنایہ کے گال پر رکھتا ہوا بولا۔ یہ منظر دیکھ کر منال کا اب ان کے بیڈ روم میں ٹھہرنا بے مقصد تھا۔ وہ بیڈ روم سے جانے لگی۔ منال دروازہ بند کرتی جانا پلیز۔ کمرے سے نکلتے ہوئے منال کو نمیر کی آواز آئی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے مڑ کر دیکھا۔ نمیر جھکا ہوا عنایہ کے کان میں شرارت سے کچھ کہہ رہا تھا، جس پر عنایہ نے مسکرا کر اسے گھور کر دیکھا۔ اب نمیر بھی عنایہ کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ منال بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے اپنے آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ 1 سال بعد وہ ڈیوٹی پر تھا جب فریدہ نے اسے کال کر کے بتایا کہ شاندے کی اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور وہ اسے ہاسپٹل لے کر جا رہی ہے۔ نوفل خود بھی فوری طور پر اسپتال کے لیے روانہ ہوا، مگر ٹریفک میں پھنسنے کے باعث اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو اسے خبر ملی وہ ایک پیارے سے بیٹے اور بیٹی کا باپ بن چکا ہے۔ فریدہ نے اسپتال کے کوریڈور میں ہی اس کو خوشخبری سنائی تھی۔ وہ دادی بن کر بے حد خوش تھی۔ نوفل مسکراتا ہوا ہاسپٹل کے روم میں اپنی ظالم حسینہ کے پاس پہنچا۔ شاندے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ چہرے پر کافی سویلنگ تھی۔ ایمرجنسی میں اس کا سیزر کرنا پڑا۔ اس وقت وہ نیم بے ہوش تھی جب اسے نوفل کے ہونٹوں کا لمس اپنے پیشانی پر محسوس ہوا۔ شاندے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ نوفل اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تمہیں چنو اور منو چاہیے تھے، چنو تو آ گیا مگر منو کی جگہ منی آ گئی۔ شاندے نے نوفل کو دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، مگر نوفل اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں ابھی بیبی نرسری میں دونوں کو دیکھ کر آیا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ منی ہمارے چنو سے بھی زیادہ کیوٹ ہے۔ دل چاہ رہا تھا اسے انکوبیٹر سے نکال کر ڈھیر سارا پیار کروں۔ نوفل کی بات سن کر شاندے آہستہ سے مسکرائی۔ کیا ہوا، زیادہ پین ہو رہا ہے؟ نوفل بیڈ پر جھکا شاندے کا گال سہلاتا ہوا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ اس سے تھوڑا کم جو تم پر گولی چلا کر محسوس ہوا تھا۔ شاندے کو اپنے عمل پر شاید ابھی بھی شرمندگی تھی، جبھی وہ یہ بات ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ ارے میں نے منع کیا تھا نا کہ اب ہمارے درمیان فضول قسم کی بات دوبارہ نہیں ہوگی۔ جب میں نے تم سے کچھ شکوہ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا تم پر، تو پھر تم یہ ٹاپک کیوں لاتی ہو ہمارے بیچ میں؟ نوفل شاندے کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ تم اتنی اچھے کیوں ہو نوفل؟ شاندے نوفل کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ نوفل کی محبت پر، اپنی قسمت پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ تم اتنی ظالم جو ہو، نوفل اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا بولا۔ اب کیا ظلم کر دیا میں نے اپنے ایس پی پر؟ شاندے درد کے باوجود مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یہ بات یہاں پر نہیں، گھر جا کر اپنے بیڈ روم میں بتاؤں گا۔ نوفل ہاتھ کا پنچ بنا کر آہستہ سے شاندے کے گال پر لگاتا ہوا بولا۔ امی کو بتا دیا تھا تم نے میرا؟ شاندے نوفل سے نائلہ کا پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی تھی، رات کی فلائٹ سے پہنچ رہی ہیں وہ۔ نوفل شاندے کو لگی ڈرپ کی سپیڈ سلو کرتا ہوا اسے بتانے لگا۔ آپی اور عنایہ کو بھی بتا دیا؟ شاندے کو اب دوسری فکر دونوں دیورانی اور جیٹھانی کی ہوئی، جن کی آپس میں کافی زیادہ بنتی تھی۔ بے فکر ہو جاؤ، میں نے نمیر اور نہال دونوں کو اطلاع دے دی تھی، تھوڑی دیر میں تب یہاں آن دھمکیں گے، ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لو۔ نوفل شاندے کے خیال سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو شاندے نے مسکرا کر اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی۔ عنایہ اور فرحین کی آپس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، بلکہ 2 ماہ کا چھوٹا سا الیان عنایہ سے زیادہ فرحین کی گود میں رہتا۔ 2 ماہ پہلے عنایہ نے گول مٹول سے صحت مند بچے کو جنم دیا، جو کہ اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنی دادی، تایا، تائی گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ اس کی دیکھ بھال فرحین بغیر کسی کے کہے کرتی تھی۔ الیان خود بیان عنایہ کی بنسبت فرحین سے مانوس تھا اور گھر میں زیادہ تر اسی کے پاس پایا جاتا، کیونکہ نمیر نے عنایہ کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ ہر روز رات میں وہ اس کی کلاس لینے سے پہلے اسے ٹینشن دینا نہیں بھولتا۔ فرحین اب کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ زندگی کی طرف بھی راغب ہو رہی تھی۔ وہ اب باتیں کرتی تھی، سب کی باتوں پر مسکراتی بھی تھی۔ اتنے سارے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ الیان کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھا لی تھی۔ نہال اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتا تھا، ہر ممکن اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ اب وہ اس کے دل کی ہر بات اس کے بولنے سے پہلے جان جاتا۔ الیان کے ننھے سے وجود کو دیکھ کر فرحین کو بھی اپنے اندر ایک کمی کا احساس محسوس ہوتا جو کہ ماں بن کر پوری ہو سکتی تھی، مگر اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ سب اسے نہال سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نہال نے فرحین کی دلی آمادگی کو دیکھتے ہوئے اپنے فرحین کے رشتے کو اس کا اصل مقام دے دیا تھا۔ اب کی بار نہال کی قربت سے فرحین کو اپنے آپ سے گھن نہیں آئی، بلکہ اسے اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔
6 سال بعد आलियान फौरन अंदर आओ वरना अभी मैं तुम्हारे डैड को बुलाती हूँ। घर के लॉन में 5 साल आलियान बारिश में काफी देर से भीग रहा था। अनाया हैवी डील डोल के साथ शेल्टर के नीचे खड़ी अपने बेटे को देखती हुई बोली, इसका 9th मंथ स्टार्ट था। मम्मा प्लीज, खुद तो आप बारिश से डरती हैं, मेरे को डैड से मत डराइए। बारिश में भीगता हुआ लियान अनाया को देखता हुआ बोला, मैं बारिश से बिल्कुल नहीं डरती, मगर यूं बेवकूफ़ों की तरह बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन तुम अपने डैड से नहीं डरते, ये बात मैं अभी जाकर नमीर को बताती हूँ। अनाया का डर अब बारिश से ख़त्म हो चुका था। वो अब बारिश में नॉर्मल रिएक्ट करती थी, मगर बरसात में भीगना इसे ज़रा भी पसंद नहीं था। मम्मा प्लीज़, आप डैड का नाम लेकर मुझे क्यों डरा रही हैं? ट्रस्ट मी, 10 मिनट बाद खुद आ जाऊँगा। नमीर की धमकी देने पर अलियान एकदम सीधा हो गया, क्योंकि सरवत निहाल फरहीन के लाड प्यार ने इसे काफ़ी शैतान बना दिया था। वो सिर्फ नमीर की आंखें दिखाने पर अपने डैड से ही डरता, वरना सारा वक्त शोर शराबे और शैतानियों में लगा रहता। नौफल के बेटे माद से इसकी खूब बनती, क्योंकि वो दोनों आदतों में एक जैसे थे, पूरे घर को सर पर उठाने वाले। दोनों ही मिलकर आयजा नौफल की बेटी को बहुत तंग करते, जिसकी सूरत में इन दोनों को अपने अपने डैड से खूब डांट भी पड़ती। नमीर जरा जाकर आलियान की खबर लें, मुझे बहुत तंग करने लगा है, अब मैं डांटूंगी तो फौरन भाभी के कमरे में चला जाएगा। वो रेस्ट कर रही हैं वो रेस्ट कर रही हैं, डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट का बताया। अनाया बेडरूम में आकर लैपटॉप पर काम करते हुए नमीर को देखकर बोली, शादी के 6 साल बाद फरहीन को भी गुड न्यूज़ मिली थी। इसका 5th मंथ स्टार्ट हो चुका था। वो एक बेटी की माँ बनने वाली थी, जिसका निहाल को बेसब्री से इंतजार था। ले लेता हूँ जाकर इसकी खबर भी, पहले तुम अपनी खबर तो दो। क्या कर रही थी किचन में इतनी देर से? नमीर लैपटॉप एक साइड पर रखता हुआ अनाया के पास आया। इसकी हल्की इसकी फिक्र कि हल्की इसके बल्कि फिगर को अपनी बाहों में लेकर इसकी सांसों की महक अपने अंदर उतारने लगा। नमीर पिज़्ज़ा बेक करने गई थी या खाने? नमीर चीज़ का टेस्ट महसूस करता हुआ शरारत से पूछने लगा, जिस पर अनाया ने से घूरा। नमीर दूसरे बेटे की डैड बनने वाले हैं, अब आप सीरियस हो जाएं। अनाया इसको घूरती हुई वार्डरोब से अलियान के कपड़े निकालने लगी। चंदा, मेरे सीरियस होने पर ही तुम सेकंड टाइम एक्सपेक्ट कर रही हो? छोड़ो ये कपड़े, सुबह से तुम्हें इधर से उधर फिरता हुआ देख रहा हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें भी रेस्ट बोला है, अब शराफत से बेड पर लेट जाओ। नमीर ने अलियान के कपड़े अनाया के हाथों से लेते हुए इसे बेड पर लेटाया और खुद भी इसके करीब आकर बैठ गया। अब वो मामूल की तरह अपने दूसरे बेटे को किस करके इससे बातें करने लगा। माई लिटिल बॉय, कब आने का इरादा है अपने डैड और मम्मा के पास? तुम्हारे डैड को तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। प्लीज यार, तुम अपने भाई की तरह अफलातून मत निकलना, बिल्कुल अपनी मम्मा पर जाना, एकदम कूल और बातूनी। आखिरी जुमला बोलते हुए नमीर ने अनाया को देखकर मुस्कुराते हुए आंख मारी, जिस पर अनाया भी मुस्कुराने लगी। वो अब बहुत बातूनी हो गई थी। अपने बेटे से बातें कर ली हैं तो आप मेरी बात भी सुन लें, आज मिनाल आपी की बारात है। नमीर, हम दोनों जाएंगे ना? अनाया बेड पर लेटती हुई नमीर से पूछने लगी। मिनाल ने 6 सालों में आने वाले हर रिश्ते को रिजेक्ट किया, अब एक रिश्ते पर वो मानी थी, जिस पर इशरत अपना सर पकड़कर रह गई, जबकि फरमान ने तो अपनी ही औलाद को इसके हाल पर छोड़ने का फैसला किया। अदनान यानी मिनाल का होने वाला शौहर, जो कि पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। मिनाल से 1 साल पहले इसे धुआंधार मोहब्बत हो गई और अब मिनाल इससे जिद करके शादी कर रही थी। यार, हफ्ते भर के बाद मुझे एक छुट्टी मिली है, मैं ये दिन रिलैक्स गुजारना चाहता हूँ, और तुम्हारी खुद की कंडीशन ऐसी कहाँ है जो तुम जा सको? मैंने सुबह ही निहाल से कह दिया था, वो और मामा चले जाएंगे। तुम बस रेस्ट करो और मुझे रिलैक्स करो, और अपनी अफलातून औलाद को ये कपड़े मैं खुद पहना दूंगा, मगर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर वो यहाँ कमरे में आ गया तो मुझे तुम्हारे करीब रहने का मौका मुश्किल से ही मिलेगा। नमीर बोलता हुआ अनाया के चेहरे पर झुका। डर तो नहीं लग रहा? नमीर अपनी कोहनी अनाया के तकिए पर टिकाकर दूसरा हाथ अनाया के पेट पर रखता हुआ इससे पूछने लगा, क्योंकि आलियान की दफा में वो काफी डरी हुई थी। ज्यादा नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा। अनाया नमीर के शोल्डर पर हाथ रखती हुई बोली, थोड़ा थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा ना इस टाइम? नमीर ने जैसे ही अपने होंठ अनाया की पेशानी पर रखे, वैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला। अनाया ने फौरन अपना हाथ नमीर के कंधे से हटाया। नमीर एकदम पीछे हुआ। आप प्रॉमिस डैड, मैंने कुछ नहीं देखा। और रियान ने बोलने के साथ अपने दोनों हाथ आंखों की जगह होठों पर रख लिए। कितनी बार कहा है तुम्हें, पहले दरवाजा नॉक करते हैं फिर किसी के रूम में जाते हैं, कब आएंगे तुम्हें ये मैनर्स मालूम नहीं? तुम्हारी मम्मा को सुला रहा था मैं। नमीर अपने बेटे को डांटने के साथ बात बनाता हुआ बोला, बेबी डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। रियान ने अपने गुस्से में हमारे डैड को रिलैक्स करना चाहा। शट अप डैड का बच्चा, उठाओ अपने ये कपड़े, दादू के रूम में जाकर चेंज करो और इनसे, और खबरदार
चेंज कराओ इनसे और खबरदार जो तुम ताई के रूम में गए ये फिर दोबारा बाहर या फिर दोबारा बाहर निकले। अमीर दोबारा से अपनी आंखें दिखाकर बॉल करने लगा। आलियान मासूम शक्ल बनाकर अपने कपड़े उठाता हुआ रूम से बाहर निकल गया। जिस पर अनाया नमीर को देखकर मुस्कुराने लगी। आंटी मुझे बताती हैं यह पूरा आप ये आंटी मुझे बताती हैं ये पूरा आप पर ही गया है। अनाया की बात सुनकर नमीर भी मुस्कुरा दिया। गलती गलत बोलती है मामा, ये मुझे अपना भी बाप लगता है। नमीर के बोलने पर अनाया दोबारा हंसी। ये लीजिए आज हमारा नावल जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है और आई होप कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं कल एक नया नावल लेकर हाजिर होंगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।